ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ پہلا مدنی مذاکرہ جو میں نے یہاں پہ بیٹھ کے لائیو سنا، اور میں آج مرید ہو گیا ہوں بابا جی کا، اور داڑھی مبارک رکھنے کی اور ماما شریف باندھنے کی میں نے نیت کی ہے، بہت بہت مبارک جی۔ اور میں 6 ماہ سے روزگار کے مسائل میں الجھا ہوا تھا، اسی سلسلے میں کل میں نے تعویذ عطاریہ لیا یہاں سے۔ آج بعد نماز مغرب میں یہاں پہ بیٹھا تھا اور مجھے خود کال آ گئی، اسلام آباد سے کال آئی ہے کہ آپ کو جوائن کریں، منگل والے دن ڈیوٹی کو جوائن کریں۔ 1260 کلومیٹر کا سفر اسی نیت سے طے کیا کہ میں یہاں پہ آ کے مرید ہوں گا اور میرے مسائل حل ہو جائیں انشاءاللہ۔ اسلام آباد میں بھی جہاں راول پنڈی میں مرکز ہوا، میں انشاءاللہ وہاں پہ جایا کروں گا اور دین کی دعوت بھی لوگوں تک عام کروں گا۔ میرا تعلق جو ہے کراچی سے ہے، 5 سال ہوئے میں نے اسلام قبول کیا، تو میں نے یہاں پہ بہت سی چیزیں سیکھی ہوں، یہاں سے بہت ساری چیزوں سے متاثر ہوا کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے ایک بات انہوں نے کہی کہ جیسے پبلک میڈیا پہ جس طرح پوسٹ وائرل کی جاتی ہیں تو اس میں اکثر میں دیکھتا تھا کہ یہ چیزیں جو ہے نا مطلب ایک نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے اس کے اوپر جو سوال تھے میرے بھی مطلب ایک مائنڈ میں اس کا جواب مل گیا کہ اس طرح کی کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو اس کو مطلب اوائڈ کیا جائے۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کے اندر حاضری ہوئی اور امیر اہل سنت کی زبانیں بہت کچھ آج سیکھنے کو ملا۔ مثال کے طور پر آج یہ بھی ملا کہ جو نابینا شخص ہے اس پر جو ہے وہ حج فرض نہیں ہے، اسی طرح نابینا کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی واجب نہیں ہے۔ میں 3rd ٹائم آیا ہوں، فرسٹ ٹائم میں آیا تو وہ فیلنگ کچھ اور تھی، سیکنڈ ٹائم کی کچھ اور تھی، بٹ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے میری قیمت مل گئی، مطلب جو میں آرام چاہ رہا تھا نا، سکون چاہ رہا تھا، تو بھائی ٹائم ضائع نہ کیا کریں، یقین کریں مدنی مذاکرے سے جوائن رہا کریں۔ میں نے آج یہ نیت کی ہے کہ پہلی محرم سے لے کے 12 محرم تک انشاءاللہ تعالیٰ قافلے میں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی آزمائش سے نکالا ہے 2.5 سال کے بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور امیر اہل سنت کی زبانی ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کس طرح کی ویڈیوز کا ہم نے سپورٹ کرنی ہے اور کس طرح کی ویڈیوز کو سپورٹ نہیں کرنا، کیونکہ آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں بیچ میں اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ کینسر ہو جائے گا ہاتھوں کو اگر لائک نہ کیا، یہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو امیر اہل سنت نے اس طرح کی ویڈیوز کو شیئر کرنے سے منع فرمایا۔ اس مدنی مذاکرے میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کون سے تعویذ جو جلانے چاہیے اور کون سے نہیں جلانے چاہیے، یعنی جو مقدس جس میں آیت مبارکہ لکھی ہے، جس مقدس نام لکھے ہیں ان کو نہیں جلانا چاہیے، اور جو دوسرے تعویذ ہے جن میں نہیں لکھے جو حروف ہیں وہ جلا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہاں پہ بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے، اور میں پہلے بھی یہاں سے گیا تھا کورس سیکھ کے، پھر میں دوبارہ آیا ہوں۔ الحمدللہ یہاں پہ 63 دن کے کورس میں ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے، پنجاب سے، لاہور سے، کراچی سے، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی یہاں پہ آئیں، 63 دن کا کورس کریں۔ امیر اہل سنت بہت پیارا ذہن دلایا کہ جو غرباء ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے، جو سادات اکرام ہیں، ان کے لیے جو صاحب حیثیت ہیں وہ ان کو جانور بھی دیں، اور ان کے جو ہے کٹائی کے پیسے بھی ان کو دے دیں، چارے کے پیسے بھی دے دیں، تھیلیوں کے پیسے بھی دے دیں، تو یہ بہت کم کوئی کسی کو جو ہے ترغیب دلاتا ہے، یہ تو بہت اچھی ہے، اور یہ پیغام ہے ان کے لیے امیر اہل سنت کا، سعادت بھی ہے کہ وہ اس وقت امیر اہل سنت کی جو ہے دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا، صحت کے حوالے سے فرمایا کہ صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کہ صحت جتنی آپ کی اچھی ہوگی آپ اتنی اچھی طرح عبادات کر سکیں گے۔ نعروں کے حوالے سے جو امیر اہل سنت نے فرمایا نا، تو جب امیر اہل سنت تشریف لائے تو میں نے بھی نعرے لگائے، میں نے آج ہی سے نیت کر لی ہے کہ انشاءاللہ الکریم آئندہ موقع محل دیکھ کر ہی نعرہ لگاؤں گا، ایسے نہیں لگاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ
कई मसाइलनि जे तहत असांजी रहनुमाई फरमाई। सुवाल कयो अमीर अहले सुन्नत जी बारगाह में त अवाम में ही मशहूर आहे त अगरि जेको मैयत ते रोअंदो आहे त उन जा ॻोढ़ा उन जी क़बर ताईं पहुची वेंदा आहिनि, उन जी क़बर ते वञी जमा थींदा आहिनि। त इहो इन जो छा हक़ीक़त आहे? त अमीर अहले सुन्नत फरमायो त इहो अवाम में इहो ग़लति मशहूर आहे, इन जी का हक़ीक़त न आहे। आज चंद बातें तो माशाल्लाह क्या बताएं, लेकिन आज हमें जो अमीर सुन्नत ने दुआएं दी ख़ुसूसन 12 माह वालों के लिए, और तरग़ीब भी इरशाद फरमाई बाकिया को कि आप भी 12 माह में सफ़र कर ले। 12 माह में सफ़र करना कितना ज़रूरी है, तो ये सुनकर और दुआएं लेके तो दिल बहुत खुश हो गया। नियत करता हूँ मदनी मुज़ाकरे में अगर यहाँ बन पड़ा तो आएंगे, नहीं तो फिर मदनी चैनल के ज़रिए इंशाल्लाह देखेंगे। अभी चूँकि ज़ुल्हिज्जतुल हराम के 10 जो है वो मदनी मुज़ाकरे हो रहे हैं, तो कोशिश करें हत्तल इम्कान जितना हो सके मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें। तो मदनी मुज़ाकरा देखते रहिए, नमाज कायम करते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, एहतिकाफ की नियत ज़रूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल ही में नियत कर लीजिए मैंने सुन्नत एहतिकाफ की नियत की, आप मुतकिफ हो गए। जब तक मस्जिद में रहेंगे सवाब मिलता रहेगा, जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे ये नफल एहतिकाफ ख़त्म हो जाएगा। ये भी याद रहे कि मस्जिद में खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आब ज़मज़म शरीफ पीना, दम क्या हो पानी पीना, न्याज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एहतिकाफ की नियत की हो। एहतिकाफ की नियत नहीं की थी तो मस्जिद में इफ्तार नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते। तो अब नियत कर लीजिए और इफ्तार कर लीजिए, खाना खा लीजिए। अलबत्ता मुनासिब तरीका ये है कि सवाब के लिए नियत करें कि सवाब भी मिले। एहतिकाफ की नियत सवाब के लिए करें, कुछ जिक्र व दुरूद कर लें, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अब बेशक इफ्तार वगैरह कर लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियादुल सलाम पेज नंबर 2 से ज़ुल्हज्ज शरीफ की दूसरी रात के मुनासबत से निस्बत से रिसाला ज़ियादुल सलाम पेज नंबर 2 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 2। बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात से 10वीं शब यानी ईद रात तक मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होगा इंशाअल्लाहुल करीम। और आज दूसरी रात है और सवालात का टाइम आ गया है, तो आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए वाए शाये करता, अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ अपनी भूल कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे मुर्शिद करीम की बारगाह में सवाल ये है, जैसा कि कल एक सवाल चला नाखून काटने के हवाले से, हजामत बनवाने के हवाले से, इन 10 अय्याम के अंदर तो एक बड़ी तादाद है जो इन 10 अय्याम के अंदर अपने चेहरे से दाढ़ी भी नहीं हटाते हैं। तो ज़ही नसीब
کہ ایسا کچھ آپ ارشاد فرمائیں کہ ان 10 دنوں کے اندر مستحب کام پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی 10 ذی الحجۃ الحرام ہوتی ہے اس کے فوراً ہی جو ہے لوگ اپنے چہروں سے داڑھی اتار دیتے ہیں، تو کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر، ایسا بھی کرتے ہوں لوگ تو واقعی تعجب نہیں ہے، اور یہ کہ یہ نیت ہے کہ میں عید کے بعد منڈوا دوں گا، تو اس کے لیے مستحب کا ثواب کہاں سے ملے گا؟ وہ تو پہلے حرام کی نیت کر رہا ہے۔ کوئی کام جو مستحب ہوتا نا، یہ اس وقت تک مستحب ہوتا جب تک کوئی سنت نہ چھوڑے یا کوئی گناہ نہ کرے، تو یہاں تو گناہ کا پہلے سے ارادہ ہے، تو غالباً ابھی تو مستحب نہ رہا، اس کا یہ ہے گناہ کا ارادہ ہے، اس کا عید کے بعد تو میں کاٹ دوں گا اس کو۔ انڈرسٹوڈ۔ تاہم یہ اس کی مطلب یوں لگتا ہے کہ دین سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے اور شریعت سے محبت ہے، بے باکی نہیں ہے، یعنی یوں اب کرتا ہی ہے تو اللہ توفیق دے، تو جو ایسا کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہمت کرے اور پکا ہی داڑھی رکھ لے اور توبہ کر لے، آئندہ انہیں گزشتہ جتنی بار منڈائی گٹائی اسے توبہ کر لے۔ ایک عیسائی بھائی کو میں جانتا ہوں جنہوں نے وہ جشن ولادت کی خوشی میں چاند رات سے 12 دن کے لیے داڑھی منڈنا چھوڑ دیا۔ پہلے لوگ داڑھی منڈاتے تھے زیادہ تر، اب وہ داڑھی منڈاتے کم ہیں، اب وہ فینسی داڑھی رکھتے ہیں۔ یہ بھی مطلب ظاہر گناہ ہے، چھوٹی چھوٹی جو رکھتے ہیں ایک مٹھی سے، طرح طرح کی وہ کٹنگ اور تراش خراش اور ڈیزائننگ داڑھی میں کر رہے ہیں، یہ سب مطلب ایسا نہ کریں، سب ان سے توبہ کریں۔ تو اس نے 12 دن کے لیے رکھی، بس وہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اس نے پوری رکھ لی پھر، اور ماحول میں بھی آئے، اور مطلب تو ایک دوست ان کا پرانا تھا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی کہ یہ تمہارے اندر کیسے آئی ہے، وہ ان کو جانتا ہوگا، مجھے تو نہیں پتا ان کے کیا کیا مطلب کارنامے ہو۔ تو یہ جشن ولادت کی برکت، یہ 12 دن، تو اب یہ کہ اللہ کرے کوئی اور بھی ایسی ہمیں مدنی بہاریں ملیں کہ بھائی وہ 10 دن کے لیے نیت تو خراب تھی کہ مونڈ دوں گا، لیکن 10 دن کے لیے رکھی تو اب بس میں نے رکھی۔ آقا کی جو سنت ہے، اب اس کو کیا مطلب کیسے کاٹنا اور کیسے اس پر وہ کینچی چلے تو کیسے اس طرح چلے، آقا کی سنت کو سجانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کم از کم ایک مٹھی، ہاں ایک مٹھی کے بعد جو داڑھی کاٹی تو یہ سنت پر کینچی چلانا نہیں ہے، بلکہ سنت ہے کہ کم کر دیا، اعلیٰ حضرت نے اس کو لفظ سنت لکھا ہے اس پر۔ تو ایک مٹھی کے بعد بھلے کاٹتے ہیں، ایک مٹھی سے پہلے، اور پھر جو چھوٹی رکھ کے مزید ڈیزائننگ کرتے ہیں، یہ نہیں، اچھا غلط 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 در غلط سا نہ کریں، سب میرے بھائی توبہ کریں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی اتنی تاکید ہے کہ یہ واجب ہے، داڑھی منڈانا، ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو جو 10 دن کے لیے نیت کی ہے وہ بھی، اور جنہوں نے 10 دن کے لیے بھی نیت نہیں کی وہ بھی، اب وہ پکا ہی آقا کی سنت کو سجا لیں کہ اب تو قبر میں جائیں گے اور ساتھ لے کر جائیں گے، نام مصطفیٰ پر گردن کٹتی ہے تو کل نہیں، آج نہیں، ابھی بھلے کٹے، آقا کی سنت نہ کٹے نہ گھٹے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں جن کی نہیں آئی، نکلی نہیں ہے نیت، تو وہ بھی کریں گے تو ثواب ملے گا، نیت کا تو ثواب ملے گا نا، جبکہ دل کی نیت ہو کہ میں نے رکھنی ہے اور پکی نیت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ نے ماشاءاللہ داڑھی شریف کے تعلق سے اسلامی بھائیوں کو بڑے پیارے مدنی پھول دیے، نصیحتیں فرمائی، اللہ کرے عمل بھی ہو جائے، مگر والا جو میں نے واقعہ بتایا آپ بھی جانتے ہیں ان کو، جی آپ نے ایک دو اشارے کم دیے مزید۔ اچھا اگر انہیں بھی اگر آپ تھوڑا سا، کیونکہ بعضوں نے ہو سکتا ہے کہ ذہن بنا لیا ہو کہ نہیں یار صحیح فرما رہے ہیں، اب وہ جو آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، یا جو بھی گھر پر ہیں اور یہ یہاں پر ہیں، تو جیسے بچوں کی امی ہیں، اسی طرح امی ہیں، ابو ہیں،
تو یہ جو اگر ان کو بھی کچھ کہہ دیں کہ بلکہ ابو کو بھی کہہ دیں، اب آپ منع کیا کرتے ہو، آپ تو اس سے زیادہ آپ کا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کا ضروری ہے، اب آپ بھی بڑھو یہ بھی بڑھے آگے. تو یہ جو منع کرنے والے جو ہے نا، ان کو بھی اگر آپ تھوڑا سا بیان کر دیں تو ہو سکتا ہے کام ہو جائے. یہ بھی ہے، ہاں واقعی آپ نے صحیح فرمایا کہ منع کر دیں. تیری یہ عمر ہے داڑھی رکھنے کی. یہ نوجوان جو روز مر رہے ہیں یار، ڈیلی نہ جانے کتنے نوجوان مرتے ہیں. اسکوٹر ہم جیسے بڈھے نہیں چلا رہے ہوتے، جوانی ہوتے ہیں 15 سال 17 سال 18 سال. میں تعزیتی پیغامات کی میرے پاس تو لسٹیں آتی ہیں نا، اس میں 17 سال 20 سال 19 سال 18 سال کے نوجوانوں کے نام ہوتے کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا. اور میں کبھی کبھی رک جاتا ہوں اپنے بیعت بناتے مجھے زیادہ رحم آتا ہے کہ یار اس عمر میں بیچارہ چلا گیا. خاندان میں جو کوہرام مچا ہوگا وہ اپنی جگہ پر ہوگا، اور ماں باپ کی جو کیفیت ہوئی ہوگی ظاہر ہے وہ تو سب ہم نہ لکھتے ہیں نہ اس کو بولتے ہیں. جو ماں غش کھا کر اگر گرتی ہوگی تو بے ہوش ہوتی ہوگی تو باپ جو ہے اس کا پتہ نہیں دماغی توازن بھی قائم رہا ہوگا نہیں. جوان بیٹا ایک دم سے چلا جائے، ایک تو بیمار پڑے 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 بستر پر جائے، اور ایک اچانک ہنستا بولتا نکلا تھا اچھلتا کودتا، اور پھر اس کی خون میں نائی ہوئی لاش اگر آتی ہے تو گزرے کیا ماں باپ پر. تو یہ روز کا معمول ہے. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں اتنے فوت ہوتے ہیں. یہ اسکوٹر جو ہے نا، یہ ساری سواریوں میں سب سے خطرناک سواری اسکوٹر ہے، سب سے خطرناک. اور سب سے محفوظ سواری مانی جاتی ہے ہوائی جہاز. تو ظاہر ہے وہ گلیوں میں اور یہ ہوائی جہاز تو نہیں چلتا. ایک بات بتا رہا ہوں میں معلومات کے لیے، تو اسکوٹر کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. کیا کرے آدمی؟ تو وہ سنبھل کے چلانا چاہیے. ہیلمٹ مضبوط والا ہیلمٹ لینا چاہیے اچھی کمپنی کا. اور پھر باندھنا میں یہ بات خالی رکھ لیتے سر پر فارمولیٹی کے لیے، پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے. پولیس تو بولے نہ بولے، جب گریں گے تو پتہ چلے گا، پولیس بچانے نہیں آئے گی. ہیلمٹ ٹھک کر کے اچھل کر گرے گا، آپ کا سر جائے گا. تو اس میں پھر فوتیاں بھی اموات ہوتی ہیں، زخمی یا وہ بیچارے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ سب کو ڈرنا چاہیے اللہ سے. تو یہ جو روکتے ہیں نا داڑھی سے یا دیگر نیکیوں سے، وہ یہ سوچیں کہ ان کو آپ موت سے نہیں روک سکیں گے. آپ بھی اپنی آخرت کی فکر کریں. آپ بھی نہیں رکھتے، بچوں کو بھی نہیں رکھنے دیتے. یہ کیا عمر ہے اس کی؟ تو یہ دیکھو نا، میں نے بتایا نا کتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں روز فوت ہو رہے ہیں، ہارٹ فیل بھی ہو رہے ہیں. ہاں واقعی میں بولتا ہوں 18 سال 20 سال 22 سال کے بھی آتے ہیں میرے پاس نام جو ہارٹ فیل ہو گیا. اللہ کی شان ہے، بس ہمارے لیے عبرت ہے، ہم عبرت لیتے نہیں ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ قرآن کی آیت ہے کہ آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو. ہم نہیں سمجھتے، کسی کوئی لینگویج نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہ یاد رکھیے کہ جیسے کہ کوئی داڑھی رکھتا ہے نوجوان بیٹا اور ماں روکتی ہے اس کو یا باپ روکتا ہے، یہ پتہ ہے کس کھاتے میں جا رہے ہیں. قرآن کریم میں ولید بن مغیرہ گستاخ رسول، جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی تھی، تو قرآن نے اس کے 10 عیب گنوائے. اس میں سے یہ بھی ہے مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا، چھوٹا نہیں بڑا روکنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو بھلائی سے نیکی سے روکنا یہ تیرا میرا کام نہیں. یہ ولید مغیرہ گستاخ رسول کا یہ کارنامہ، یہ کرتوت، یہ قرآن نے بیان کیا ہے. تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے نہیں آتے کہ مطلب ماں باپ اگر بلا وجہ نفل نماز سے نفل روزوں سے بھی روکیں گے تو وہ اسی آیت کے تحت آئیں گے. اسی طرح جو داڑھی سے روکیں گے وہ بھی اسی آیت کے تحت آ جائیں گے کہ یہ مناع للخیر والا کام کر رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں، توبہ کریں. اور ہمیں تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کرنے، ان کے گستاخوں والے کام نہیں کرنے، اللہ اور رسول کے دشمنوں والے کام نہیں کرنے. ہمیں قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ، یہ قرآن کہہ رہا تھا. اس
बेहतरीन नमूने में आप चेहरे अनवर का तस्वुर करें, दाढ़ी मुबारक भी है ना, हमें तो इस नमूने की पैरवी करनी है, इस नमूने की नकल करनी है। वैसे इम्तिहान में अगर नकल करना मना होता ना, मायूब होता है, और यहाँ जो नकल करे वही पास है आखिरत में। ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नकल करे, इनकी सुन्नत को जो अपनाए, इनके पीछे 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 चले, तो वो पास है। सरकार किस तरह चलते थे, किस तरह बैठते थे, किस तरह खाते थे, किस तरह पीते थे, तो ये सब इनकी नकलें जो करेगा वो कामयाब है। और जितनी उम्दा नकलें करेगा इतने आला नंबरों से पास होगा। हमें अल्लाह करे नसीब हो जाए, जज्बा मिल जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयद साकिब, अमीर अहले सुन्नत से अर्ज कर रहा हूँ, कुर्बानी के लिए खरीदा गया जानवर बेचना कैसा है? कुर्बानी के लिए अच्छा लेकर अब बेचना चाहता है, अगर तो ज़्यादा कीमत वाला लेना चाहता है इसलिए बेचता है तो ये ठीक है, वरना फिर इसकी इजाज़त नहीं है। और अगर कम कीमत का मिसाल के तौर पे ले लिया तो जितनी कीमत का फ़र्क आएगा उतना सदका करना होगा। यानी बेचकर कोई ज्यादा कीमत वाला लेना चाहता है कि यार ये 25,000 वाला मैंने लिया है तो नहीं अपने को 40,000 वाला लेना है, तो ये बेच दिया। अब मज़ीद रकम डाल के 40,000 वाला ले लिया, तो ये सूरत सही है। अब वो 40 का ले लिया समझो, और अब बोले यार अपने को 25,000 वाला लेना है, ये तो बहुत महंगा ले लिया। तो अब अगर ये बेचेगा और तो 25-20 में जितने बेचे, तो ये कि ये इसको इसकी इजाज़त नहीं है कि बच गए तो रख ले पैसे, या 40 में ही बेचा, 50 में ही बेचा, तो ये जितने भी ज़्यादा रकम आई और जितने का बकरा लिया, तो बकरा भले उसमें से ले लिया, जो बचत हुई ये बचत भी अब ये इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसको सदका करना होगा। जैसे जिसको ज़कात देना है तो ऐसे को वो दे दे ये रकम, और तौबा भी करे, इसने गुनाह का काम किया, इसको ऐसा नहीं करना था। और जो फ़कीर होता है, शरई फ़कीर, शरीयत ने जिसको फ़कीर तस्लीम किया, माना, वो तो अगर कुर्बानी की नीयत से जानवर ले ले तो ये तो बदल ही नहीं सकता, किसी सूरत से इसको बदलने की इजाज़त नहीं है, इसी की कुर्बानी इसको करनी होगी। वो तो जो गनी है ये उसके जिस पर कुर्बानी वाजिब थी, ये जो मसाइल भी बयान हुए थे ये उसके मसाइल हैं। फ़कीर का तो यहाँ तक के जख्मी हो गया, टूट फूट गया, तब भी उसी की कुर्बानी करनी है, ठीक है ना, ये उसको ये बदली नहीं कर सकता। गनी बदली करे ये नहीं कर सकता। गनी माने ऐसा शख्स के जो साहिब निसाब हो और उसकी निसाब कर्जे वगैरह में डूबी भी ना हो, साहिब निसाब हो जिस पर कुर्बानी वाजिब है, यहाँ ये मतलब समझो वो गनी। ज़कात और इसमें फ़र्क है थोड़ा, ज़कात में साल गुजरना होता है और इसमें कुर्बानी में ये कि 10 ज़ुल्हज शरीफ की सुबह सादिक, जब सहरी का वक्त खत्म होता है ना, फजर का वक्त होता है ना, उस वक्त से लेकर 12 ज़ुल्हज शरीफ, तीसरी ईद जिसको हम बोलते हैं, तो 12 ज़ुल्हज शरीफ के गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अगर ये साहिब निसाब बन गया, समझो अचानक किसी ने इसको गिफ्ट ही कर दी कोई रकम, समझे, इससे ये साहिब निसाब बन गया, तो इस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुर्बानी का जिक्र जारी है और कुछ सवालात हैं, हम चाहेंगे कि अगर इसके जवाबात हमें ऐसा मिल जाएं तो हम इसके मुख्तसरन सवालात के जवाबात एक मदनी गुलदस्ता हम आशिकान रसूल के लिए जारी करें। तो चंद सवालात मैं आपसे कर लेता हूँ। क्या पिछली उम्मतों में भी कुर्बानी की इबादत थी? जी हाँ, हर कौम में तरीका जुदा जुदा था। क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कुर्बानी की है? वो मदीना मुनव्वर में जब से हुक्म नाजिल हुआ तो मदीना मुनव्वरा में 10 साल की मदनी जिंदगी में हर साल आपने कुर्बानी की है। क्या पूरे घर की तरफ से एक बकरा कुर्बान कर सकते हैं?
जिस पर वाजिब है ना उस फर्द के नाम पर कुर्बानी कर सकते हैं, या नफल भी अपने अपने नाम पर कर सकते हैं, मगर एक बकरा पूरे घर की तरफ से नाकाफी है। या इसको जवाब मुख्तसर ये दे लेंगे कि सब घर वालों की तरफ से एक बकरा नाकाफी है, एक बकरा सिर्फ एक फर्द की तरफ से कुर्बान किया जा सकता है। बच्चों की तरफ से क्या वालिद के जिम्मे है कि वो कुर्बानी का जानवर ले आए और ज़बह करे? ना, बेटा या बेटी पढ़ते हैं, कमाते नहीं हैं, क्या कुर्बानी उन पर भी वाजिब हो सकती है? कमाता हो या ना कमाता हो, जो साहिब निसाब है और कुर्बानी के शराइत पाए गए उसमें वाजिब होने के, तो अब कुर्बानी इसको करनी होगी। ठीक है। बुरे वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना क्या ज़रूरी है? जी नहीं। क्या फौतशुदा मरहूमीन का कुर्बानी में हिस्सा रखा जा सकता है? रखा जा सकता है। अगर वो हज करने गया तो क्या हज की कुर्बानी से वाजिब जो कुर्बानी थी वो अदा हो जाएगी? वो जो हज की कुर्बानी है ना, हज तमत्तो में, हज किरान में, तो ये शुक्रानी की कुर्बानियाँ हैं, हज के शुक्रानी की कुर्बानियाँ हैं। इसका ताल्लुक ये बकरीद की कुर्बानी से नहीं है, बल्कि इसमें ये भी शर्त है कि वो हरम के अंदर हों, उनके भी औकात वही है जो इस कुर्बानी के, तो इसका ताल्लुक इस कुर्बानी से नहीं है, बकरीद की कुर्बानी से। जो हज पर गए हैं और साहिब निसाब हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है, तो क्या वो हज की कुर्बानी भी करेंगे और वो इनके ऊपर जो दीगर कुर्बानी वाजिब है, ये दो क्या कुर्बानियां करेंगे? अगर वो मुसाफिर हैं, चाहे गनी है, मालदार है, तो इन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और जो मुसाफिर नहीं, मुकीम हैं, मुकीम हो गए, यहाँ से गए और मुकीम हुए हैं वहाँ, तो इस पर कुर्बानी अगर ये साहिब निसाब है तो वाजिब हो जाएगी। अब इसकी फिर डिटेल है कि 15 दिन रात अगर वहाँ 15 दिन तक ये मक्का मुकर्रमा में ये रहने वाले हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी जो जाते हैं या इतने दिन पहले गए मगर मदीना शरीफ क्योंकि बेच देते हैं, तो अब ये कि इनका सफ़र तो रहता नहीं है फिर, लेकिन मसला ये कि 15 दिन अगर वहाँ ये रहेंगे मसलन मक्का मुकर्रमा में, तो इन पर कुर्बानी वाजिब होगी शराइत पाए जाने की सूरत में, साहिब निसाब हो। लेकिन मक्के शरीफ में 15 दिन मिल तो रहे, लेकिन इस दौरान ये पता है कि ये बीच में मिना भी जाना है, अरफात भी जाना है, मुज़दलिफ़ा भी आना है, तो ये इसका सफ़र टूट जाएगा। ये नियत करे तो भी इसकी नियत वैलिड नहीं है, जबकि गया हज के लिए कि अंडरस्टूड है कि इसको तो जाना ही है मिना शरीफ, अरफात शरीफ, तो अब इस पर अगर ऐसी सूरत हाल है तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। बीवी की कुर्बानी क्या शोहर की जिम्मेदारी है? जी नहीं। अगर किसी ने फकीर का कुर्बानी की नीयत से खरीदा हुआ जानवर मर जाए या गुम हो जाए तो क्या हुक्म है? फकीर का जानवर गुम हो जाए या फोत हो जाए तो अब उस पर दोबारा वाजिब नहीं है कि नया जानवर खरीद कर कुर्बान करे, वो गया उसका। ठीक है। कुर्बानी का इसाले सवाब करना। अच्छा, फकीर से मुराद ये भिखारी नहीं है, भिखारियों बस तो बाज़ वक़्त बहुत माल होता है। शरीयत जिसको फकीर तस्लीम करे न, जो ऐसा शख्स, यहाँ यूं समझ लें आप कि ऐसा शख्स जो साहिब निसाब नहीं है, कुर्बानी के शरात पाए नहीं, अगर ये वाजिब नहीं है इस पर, तो ये फकीर है। भले ना 50 लाख उसके पास है, लेकिन 60 लाख का मकरूज है, ये भले देता नहीं है, लेकिन 60 लाख का कर्जा है इस पर, तो 50 लाख इसके बाद होने के बावजूद ये फकीर है। अगर ये अदा करता है तब भी 10 लाख मजीद इस पर तो कर्जा रह रहा है। कुर्बानी का सवाब ईसाल हो सकता है? जी हाँ, जब नमाज, रोजे, हज, रमजान शरीफ के रोजे, ज़कात, सबका ईसाल हो सकता है, यूँ कुर्बानी का भी ईसाल सवाब किया जा सकता है। क्या गरीब कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकता है? अगर गरीब कुर्बानी करना चाहे तो इसके लिए है तो जायज, सवाब भी मिलेगा। अब कर्जा ले तो इसमें देख ले, अगर कर्जा अदा करने की नीयत है तो फिर भी कुर्बानी करे तो हो तो जाएगी। बेवा इद्दत में हो तो क्या कुर्बानी उस पर वाजिब होगी? बिल्कुल, अगर उस पर वो शराइत पाए जा रहे हैं तो इसका बेवा होना रुकावट नहीं है, कुर्बानी तो वाजिब हो जाएगी, इद्दत में भी कुर्बानी की जाएगी। क्या मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब होती है? नहीं होती, जिसको शरीयत मुसाफिर करार दे। हमारे यहाँ मदनी काफिले के मुसाफिर कराची टू कराची भी ये सफ़र करते हैं ना, तो इनको कहते हैं ये मदनी काफिले में इसने सफ़र किया, तो ये मुराद नहीं है। शरई जिसको शरीयत
तस्लीम करे कि ये मुसाफिर है। जो गोश्त फरोश होते हैं उनको कुर्बानी के जानवर पूरा ये तीनों दिन तक काटने पड़ते हैं, तो क्या वो तो इतने सारे जानवर काटते हैं, तो क्या इन पर भी कुर्बानी वाजिब होती है? अगर शराइत पाए गए तो इन पर भी वाजिब होती है कुर्बानी। तो ये 3 दिन के बाद करें? उन्हीं दिनों वक्त के अंदर ही करना होगा। अब जब इतने करते हैं तो एक पर छुरी फेरने में क्या देर लगती है? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। बाबा, इसमें एक सवाल ये अर्ज़ है कि अगर वालिद अपनी औलाद की तरफ से कुर्बानी करता है तो सिर्फ़ इजाज़त काफ़ी है या उसकी औलाद की भी मिल्क करना पड़ेगी वो कुर्बानी या बकरी या जो भी है? तो ये इरशाद फरमाइएगा। इजाज़त काफ़ी है। अगर किसी ने बकरा गिफ्ट किया तो क्या उसमें अपनी या किसी और की कुर्बानी की भी नियत की जा सकती है? किसी की तरफ से कुर्बानी होने के लिए जानवर उसके मिल्क होना चाहिए, यानी वो जानवर का ओनर होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। और मिल्क होने के लिए या तो ये कि जानवर उसे हिबा यानी गिफ्ट करके उसका या उसके नाइब का, नाइब वकील या जिसको इसने कहा कि आप कब्जा कर लो, वो इसका वकील नाइब कहलाएगा, तो उसका कब्जा दिला दिया जाए नाइब का। या खरीदने से पहले उसके लिए खरीदने की सराहतन या दलालतन इजाजत हासिल की जाए, यानी इजाजत हासिल कर ली जाए। सराहतन ये के खुले लफ्जों में भाई मेरी तरफ से ले आना, या दलालतन कि अंडरस्टूड है कि ये मेरे लिए लाते ही हैं, इनको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये गए तो मेरा ये ले आएंगे, तो किसी तरह भी मतलब ये साबित हो कि ये इजाजत यानी इनडायरेक्ट डायरेक्ट मौजूद है, तो सराहतन या दलालतन इजाजत हासिल कर दी जाए। या खरीदने के बाद उसे बेच दिया या बतौर फजूली उसकी तरफ से खरीद ले, हाँ, बगैर उसकी इजाजत के बगैर खरीद लिया, और जिसके लिए खरीदा है वो बाद में कुर्बानी से पहले इस बै को नाफिज कर दे, यानी मतलब अच्छा जो आपने खरीद लिया सही है, मैं एग्री हूँ, लेकिन इस तरह उसने कबूल कर लिया इसको। बस अगर कोई अपने जिंदा पीर साहिब दोस्त या किसी और अजनबी अनजाने की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो उसमें जरूरी है कि जानवर खरीदने से पहले उनसे इजाजत ले, खरीदने से पहले इजाजत ले। अगर खरीदते वक्त सराहतन या दलालतन इजाजत न ली, सराहतन या दलालतन इसके खुलासा आगे में कर चुका, न बाय फजूली ताम हुई, यानी कि बगैर बोले इजाजत लिए खरीद लिया, यह भी खरीदारी मुकम्मल नहीं हुई, तो अब इनकी तरफ से कुर्बानी करने में यह जरूरी है कि जानवर हिबा करके यानी गिफ्ट करके उनको या उनके नाइब को कब्जा दिया जाए, या इनको बेच दिया जाए, उसी को जैसे बेच दिया जिसकी तरफ से कुर्बानी करना चाह रहा है। अगर ऐसा ना किया और कुर्बानी कर दी तो पीर साहिब या दोस्त की तरफ से कुर्बानी ना होगी। अगर ऊंट या गाय के 7 हिस्सों में एक हिस्सा अपने जिंदा पीर साहब या दोस्त वगैरह का शामिल किया, लेकिन न जानवर खरीदने से पहले उनकी इजाजत ली, न वो हिस्सा बेचा, न हिबा करके न गिफ्ट करके कब्जा दिया, तो इस सूरत में किसी की भी कुर्बानी ना होगी, पूरी गाय जो है वो जाया हो गई। गोश्त हलाल है, इस तरह जो होता है इसमें ज़बा शरीर से गोश्त हलाल हो गया, कुर्बानी नहीं होगी। अपनी और सारी दुनिया के अलावा से आखिरी बात करने हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ल। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, आंखें में देखूं आँख से काबा तेरा। तो रोने की वजह क्या है? अपने आप बैठे बैठे क्यों रो रही हो आप? क्या मसला है?
مجھے لہائے سینا کی دوا وہی مل رہی مجھے لے چلو مدینہ یا مصطفیٰ تم مجھے حج پہ ہوا آگے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی فیضان رضا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. انہیں ان کے والدین دادا دادی نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے, بار بار مدینے کا دیدار عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خریدار اور بیوپاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے اویس. کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ کام یہ کر رہے ہیں 8-10 سال سے. آتے ہی کہتے ہیں دو دانت ہے. اب دو دانت سے کیا مراد ہے؟ لمبے زیادہ ہوں, چوڑے زیادہ ہوں؟ کیا چوڑے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں دانت. دو دانت جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا بڑا بھی ہوتے ہیں دانت. تو اویس بھائی گھر پہ لے جانے کے بعد ایک دانت باہر آ گیا؟ نہیں سنا تو خیر ہے, کبھی ایسا دیکھا نہیں ہم نے. نہیں ایسا سنا ہے نا, سنا ہے تو ایسا ہوا ہے. نقلی دانت بھی لگاتے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, سنا ہے کبھی دیکھا نہیں ہے سر نقلی دانت ہم نے. ذرا دانت دیکھنے کا شوق ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو. ایک تو ریٹ کو بروچنے کا شوق ہوتا ہے اور دانت دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. تو وہ جو تجربہ کار آدمی ہے وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ یہ دو دانت نہیں ہے. اب وہ ان کا تجربہ بولتا ہے اور وہ ثابت بھی کرتے ہیں کہ نا وہ دو دانت واضح کرنے کے لیے 4 دانت کو میں سے 2 دانت کو گرینڈر کر دیتے ہیں, فائل لگا دیتے ہیں اور 2 دانت ویزیبل کر دیتے ہیں. تو یہ بھی دھوکہ دہی اس طرح کی ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے, یہ بھی دھوکہ دہی. 12 کرنے والے کرتے ہیں, ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. کسی کو بولے دکھا یار 2 دانت ہے یا 4 دانت ہے, تو وہ منہ کھول کے دکھائے گا تو وہ ظاہر نقلی لگایا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں تک پہنچتے بولتے ایلفی نے کام کرنا چھوڑ دیا تو وہ ہاتھ میں آ گیا, تو اب وہ بیچارے کی قربانی گئی. نہیں ایسا نہیں ہے نا کہ اسے دانت بھی لگا کے دے رہے ہیں. آپ نے کبھی دانت نہیں لگا کے دیا, سینگ لگا کے دیا ہوگا کہ سینگ ہے نا. اللہ معاف کرے, کبھی ایسا نہیں کرا. جانور کو مطلب ہے نا ہوتا سوکھا ہے, مطلب اتنا جاندار نہیں ہوتا, لیکن اس کو بیسن کا پانی پلا دیتے ہیں, لیکن گھر پہ جاتے ہیں تو اس کی پوری ہوا نکل جاتی ہے. ہوتا ہے ایسا, کرنے والے کرتے ہیں یہ کام بھی. یہ اکثریت بکروں میں زیادہ ہی ہے. کچھ ہے نا بڑے جانوروں کی بیماریاں, کچھ چھوٹے جانوروں کی بیماریاں سیم ہوتی ہے الگ الگ ہوتی ہیں؟ سیم ہوتی ہیں نا, سیم ہوتی ہیں. اب میرے جیسا آدمی آیا اور مجھے جانور پسند آ گیا لیکن وہ بیمار ہے, اب وہ ہے نا وہ بیمار جانور بھی دے دیتے ہیں. آپ کو کیا بول رہا ہوں, دینے والے دے دیتے ہیں. بہرحال کوشش یہی کرتے ہیں, اگر منہ کو سماڑے میں منہ سے بھی آتا ہے, پیروں سے بھی آتا ہے. اس کی پیروں والا لنگڑا ہو جاتا ہے, منہ سے ہی آتا ہے, وہ کھاتا نہیں ہے, تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ صحیح کر کے بیچا جائے. سماڑے مطلب یہ منہ خوری جو کہتے ہیں, منہ خوری کی جو بیماری ہے اس کو. لیکن میں کیسے چیک کروں؟ یہ آپ ایسے چیک کریں, دیکھیں پیچھے منہ چلا رہا ہے جانور. جی جی. سماڑے والا اس طریقے سے منہ نہیں چلائے گا. تو اس کو چوئنگم وغیرہ کھلائی ہوئی ہے کیا؟ یہ جگالی کر رہے ہیں, یہ اچھا کھانا ہضم کر رہے ہیں اپنا. اچھا, اور اب یہ کھور کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ کھور کا وہی ہے, لنگڑا کے چلے گا یہ. اچھا, سینگ کے بارے میں اگر بات کریں تو بعض لوگ ہے نا خوبصورتی کے لیے سینگ کاٹ دیتے ہیں, اور بعض لوگ خوبصورتی کے لیے ہے نا سینگ لگا دیتے ہیں, وہ بھی ایلفیز ہے. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تقریباً فیشن چل چکا ہے کہ ہم بغیر سینگ کا جانور ہو خوبصورتی کے لحاظ سے. تو یہ کیسے کاٹتے ہیں؟ یہ کٹے ہوئے آتے ہیں پنجاب سے. جیسے ناخن کٹنے کے بعد بڑے ہو جاتے ہیں, سینگ نہیں بڑھتے؟ کم سے کم 2-2.5 مہینے لگتے ہیں ان کو سیٹ ہونے میں. تو اس کے سینگ ابھی تک نہیں نکلے؟ یہ اب تھوڑی نکلیں گے, یہ ان کو آگ کی سیک لگا دی جاتی ہے. تو اس کی چمڑی کو جلنے کا خطرہ نہیں ہوتا؟ جلتی ہے نا تو پھر بند ہو جاتا ہے یہ.
تو جب یہ چمڑی جل جائے گی تو سینگ پھر بڑھے گا نہیں یا تیزی سے نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا نہیں، پھر بڑھے گا ہی نہیں. گبن کہہ لیں 51 کہہ لیں، تو اس کا کیسے پتا چلے؟ اس کا ڈاکٹر بتاتے ہیں. اویس بھائی کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو نہیں، یہ تو سب ایسے ہی ہے، پیٹ پہ وہ نجومی تھوڑی ہے، دل کو بہلا رہے. ہاں اچھا کہ ہاں یہ طریقہ ہے، رائج ہو گیا، مطلب یہ طریقہ نہیں ہے، ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے. یہی بات. بعض جانوروں کے ناک میں نکیل ڈالتے ہیں، تو یہ کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ مارنے کی وجہ سے ان کی. تو یہ تکلیف دہ مرحلہ نہیں ہے جانور کے لیے؟ تکلیف تو ہے، تو مطلب یہ وقتی طور کے پھر نہ دل جاتی، اس کے بعد صحیح ہے، کوئی نہیں ہے. نہ ڈالے تو نہ ڈالیں تو اس کا ایشو بھی نہیں، جانور اگر نہ سیدھا ہے تو نہیں ڈالیں اس کے کوئی. آپ نے بہت ساری ڈسکشن سنی اور اس ڈسکشن میں یہ بتایا گیا کہ جب جانور کا سینگ کاٹا جاتا ہے تو اس کی جو جڑ ہے وہاں پر اس کو جلایا جاتا ہے تاکہ دوبارہ سینگ نہ نکلے. اچھا، ڈسکشن میں ایک اور بات ڈسکس ہوئی، جب بیپاری سے جانور لے کر جاتا ہے خریدار تو اس وقت اس کو دانتوں کا اتنا علم نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں کہ 2 دانت ہے آپ لے جائیں، اور جب وہ گھر پر پہنچتا ہے تو اس کا یا تو ایک دانت نکلی ہوتا ہے جو آرٹیفیشل طریقے سے چپکایا ہوا ہوتا ہے، یا وہ پورا 2 دانت کا ہوا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو 2 دانت کا کرنے کے لیے اس کے باقی دانتوں کو گھسا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک کوشچن بنتا ہے. اچھا، یہ 2 کوشچن جو میں نے ریز کیے، اس کے علاوہ بیوپاری اور خریدار میں مختلف ڈسکشن بھی ہوئی تھی، اس حوالے سے بھی بتائیے، اور میرے یہ 2 کوشچنز کے بارے میں بھی بتائیے پلیز شیخ، کہ آخر درست کیا ہے؟ اللہ اللہ، ٹھگی تو خیر اس میں کرتے ہیں لوگ، کرنے والے. یہاں تک کہ آپ کو سینگ یاد ہے، دم بھول گئے آپ شاید. دم بھی میں نے یاد پڑتا خود دیکھی ہے، دم ٹوٹی ہوئی گائے کی، اس کو ایک ٹیکنک سے مطلب وہ کوئی ٹیپ وغیرہ لگا کر اس کے ساتھ سیٹ کی ہوئی تھی دم. آدمی یوں کرے تو ہاتھ میں آ جائے دم. تو اس طرح دانت بھی نکلی لگانے کا مشہور ہے کہ وہ لگاتے ہیں لوگ. سینگ کا بھی ابھی سنا ہم نے، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنیک کرتے. ایک بار ہم نے بکرا لیا، ہم اٹھا کے چلے، ابھی بکرا پیڑی یہ جو بیوہ شاہ کے پاس ہے، باہر نکلے بھی لے کے چل رہے تھے، بکرا ایک دم بے چین ہو گیا اور رکھا تو اس نے دم توڑ دیا. اب خدا جانے وہ کیا بیمار تھا اور کیا پلو کر اس کو کھڑا کر دیا تھا ان لوگوں نے. ہم نے خرید دیا اور یہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا تھا بیچارے کا. تو یہ طرح طرح کا مطلب حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے، اور دھوکہ تو بہت ہی چل رہا ہوتا ہے. یہ بیسن کھلا کر اس کو موٹا تگڑا کر کے اور یہ چلا دیتے ہیں. وزن سے جو بکرے بکتے ہیں، فارمی بکرے، اس کو بھی اسی طرح کا بیسن اور کھلا کر اور وزن اس کا وہ فوری طور پر یعنی کہ وہ بڑھا دیتے ہیں تاکہ وزن میں زیادہ ویٹ ہے. تو اس طرح کے دھوکے کے طرح طرح کے انداز ہیں. جہاں جہاں دھوکہ پایا گیا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. چاہے قربانی کے لیے جانور بیچیں، چاہے شادی کے لیے بیچیں، یا ویسے ہی جانور لوگ، تو سارا ہی سال اس کا لین دین چلتا رہتا ہے. دھوکہ گناہ ہے، چاہے جانور کا کاروبار ہو چاہے اور کسی چیز کا کاروبار ہو. نہ چارے کے لیے نہ رسی کے لیے، ہر چیز میں جس میں بھی دھوکہ، تو یہ گناہ کا کام ہے. تو اب یہ کہ سینگ، اس کے کیٹل فارم والے نے بتایا تھا ایک بار کہ اس طرح نکالتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں سکو گے مجھے. کہا ایک لڑکے سے بھی ملوایا تھا کہ یہ بڑا ماہر ہے سینگ نکالنے میں. وہ اپنی ٹیکنیک سے اس کا یہ سینگ جڑ سے نکال دیتے ہیں کھینچ کر، جس سے جانور تڑپتا ہوا نا، تو اسی لیے تم دیکھ نہیں سکو گے. وہ بہت تکلیف کے ساتھ نکالتے ہیں. پھر یہ انہوں نے بتایا نا کہ سیل کر دیتے ہیں آگ سے تاکہ نکلے، دوبارہ نکلے ہی نہیں. اور بعضوں کے اتنے سینگ نکلے ہوئے بھی ہوتے ہیں. تو یہ مختلف ٹیکنیک آتی ہوگی اس کی. یہ جو میں نے بتایا یہ کراچی کا ہی واقعہ ہے. تو اس کا مطلب انہوں نے کہا کہ پنجاب سے بن کے آتے ہیں، یہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں نا اس طرح کے. تو یہ اور بھی جگہ جگہ سندھ میں بھی ہوتے ہوں گے، مختلف شہروں میں سینگ نکال دیتے ہیں. یہ خوبصورتی کے لیے جانور اس سے خوبصورت لگتا ہے. اور ورنہ بڑے بڑے سینگ والے بیل ہوتے ہیں، اب لوگ اس پر ہاتھ نہیں رکھتے. پہلے ان کی قربانی کرتے تھے لوگ بڑے سینگ والوں کی، اب نہیں کرتے. اب یہ ایک ٹرینڈ چلا، اب جڑ سے نکال دیا سینگ اور اس کو بند کر دیا.
अगर ज़ख़म भर गया है जैसा कि हो जाता है आम तौर पर, जख्म तो हिल क्या होता है, तो फिर इस सूरत में कुर्बानी हो जाएगी। ऐब ना रहा जी। कुर्बानी यानी कि ऐसे जिनके सींग निकले हुए हैं और जख्म भी भरा हुआ है, पता ही नहीं चलता। ये सारी तफसील हुई तो पता चला कि भाई इस तरह सींग निकलता है, तो ये क्या कुर्बानी हो जाएगी। क्या भी इसमें ऐब बल्कि हुस्न पैदा हो जाता है जानवर में। फिलहाल हुस्न की ये यहाँ मतलब सूरत है हमारे यहाँ ये होता है। इसी तरह एक दांत वो नकली और वो खीरा था ना, खीरा बोलते हैं इसको, जो मतलब यानी कि 2 दांत का नहीं होता, पक्की उम्र तो ये 8 दांत में बोलते हैं, बूढ़ा हो जाए तो इसको पक्की उम्र गालिबन ये लोग बोलते हैं। तो अगर 2 दांत का है और एक दांत निकल गया और 1 साल बकरे का जैसे पूरा हो गया है लेकिन एक दांत इसका अब निकल गया, यानी नकली दांत इन्होंने लगाया था। वैसे नकली दांत लगाएंगे क्यों, कुछ दाल में काला था जब ये साल भर का नहीं होगा तो ही लगाया होगा। तो अगर ऐसी कोई सूरत सामने आती है और ये पता चलता है कि साल भर का नहीं है बकरा, तो फिर कुर्बानी इसकी नहीं होगी। और दुम्बा है या भेड़ जिसके वो ऊन होते हैं, वाइट या रंगीन ऊन, तो ये जो है अगर 6 महीने का भी है, 6 महीने से छोटा नहीं चलेगा, बड़ा चल जाएगा, लेकिन किस सूरत में चलेगा, 6 महीने का है लेकिन दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो। दूसरे दुम्बों के साथ खड़ा है साल भर वाले, तो इनके साथ ये लगता साल भर का है तो तगड़ा है तो कुर्बानी होगी, और अगर साल भर का नहीं लगता, बच्चा लगता है, तब कुर्बानी नहीं होगी। और साल भर का पूरा हो गया, अब अगर किसी को बच्चा लगता है तो भले लगे, कुर्बानी हो जाएगी। एक दांत वैसे अगर निकल गया, वाकई एक दांत निकल गया और ये था पूरा साल भर का, तो इस एक दांत के निकलने से ये कि कुर्बानी के लायक वो रहेगा, है ना, कुर्बानी इसकी हो जाएगी। मगर देखे मकरू हो जाएगी, यानी कि पसंदीदा नहीं है। बेहतर यह कि छोटा ऐब भी ना हो। तो एक दांत निकलने से उसमें ऐब पैदा हुआ, लेकिन ये वो ऐब नहीं है जिससे कुर्बानी ना हो। निकलने की अगर आप थोड़ी सी वजाहत कर देते सर। में निकलना हमारे यहाँ 2 तरह का कहते हैं, एक तो किस सिरे से पैदा ही नहीं हुआ, निकले ही नहीं, और एक ही के पैदा हो के वो गिर गया, टूट गया। तो अगर निकला ही नहीं सिरे से तो क्या हुक्म है, और निकल के फिर टूट गया तो फिर क्या हुक्म है? वो टूट गया निकलने के बाद तो इसमें ऐब पैदा हुआ, एक दांत निकल गया, कुर्बानी हो जाएगी। और अगर निकला ही नहीं है, नहीं साल भर का ही नहीं है, निकला ही नहीं है, अब निकलने में भी जो मैंने जो मालूमात इकट्ठी की, इसी तरह के जो ये माहिरीन होते हैं इनसे, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो जानवर चरता है छुट्टा, तो वो घास खींच खींच के नोच नोच के खाता है, तो उसके जो दूध के दांत है ना अगले, ये जल्दी गिर जाते हैं, और साल भर से पहले ही 2 दांत वो दे देता है, तो यूं वो कुर्बानी के लायक नहीं होता 2 दांत का है। और जो बंधा हुआ होता है, पकी पकाई खाता है, नोचने के लिए जाना नहीं पड़ता इसको, आप कमाई नहीं खाता, बाप कमाई खा रहा है, तो उसके दांत जल्दी नहीं निकलते। 1 साल से ऊपर भी 2-2 महीने वगैरह भी हो जाते हैं इसके, वो नहीं निकलते। यही हाल बड़े जानवर का भी है कि वो इस तरह टाइम लेते हैं। तो अब अगर वो 1 साल का कंफर्म हो गया है, कोई मुसलमान कह रहा है जिसकी बात पर अपने भरोसा हो रहा है कि दांत इसके नहीं आए 2, लेकिन मुझे पता है कि फुला तारीख को ये पैदा हुआ और फुला तारीख को साल हो गया है और अब ये इतने दिन इसके ऊपर हो गए बिलफर्ज, वो कहता है, तो अगर उसका एतमाद है कि वो आदमी सही है कहने वाला, तो फिर ये कि वो साल भर का समझकर उसको लिया जा सकता है। इसी तरह 2 दांत वाले भी तो मसला है ना कि अगर वो चरते तो हैं जानवर और साल भर से पहले ही 2 दांत निकाल दिए, तो 2 दांत देकर हम तो खुश होकर ले लेंगे, लेकिन है तो नहीं है साल भर का। तो यूं पेचीदगी बहुत है इसमें, इसलिए बेहतर और वो एहतियात की राय है कि 4 दांत वाला लिया जाए। 4 दांत को ये रेते से जो रगड़ते हैं ना, ये उनको रगड़ते हैं जो 4 या 6 दांत के हो जाते हैं ना, रेते से रगड़ कर ये छोटा करके बड़े जो दांत होते हैं ना
इसको नुमाया रखते हैं, तो आदमी समझे कि 2 दांत का है। कि अवाम की तो आप मतलब बस जो खोपड़ी में बैठ गया, इनके समय में 2 ही दांत आते हैं, 4 नहीं आते। ये 2 दांत का इसलिए ये इनको धोखे देते हैं कि 2 दांत का, हालांकि बहुत ज्यादा बेहतर था 4 दांत वाला, देखिए 2 दांत का ये इस तरह लेते हैं। ये धोखा दिया, ये गुनाहगार है इसने धोखा दिया, 4 दांत को 2 दांत कर दिए। लेकिन कुर्बानी हो जाएगी क्योंकि ये साल भर का हो गया, शराइत पूरी, और कोई इसमें वो ऐब नहीं है जिससे कुर्बानी ना हो। इस तरह की मतलब सूरतें हैं, तो इसमें तो समझ में ये आता है कि एहतियात दर एहतियात, कि अगर जगह है, गुंजाइश है, तो अपना बकरा पाले आदमी, सारा साल इसकी खिदमत करे, इसका भी सवाब कमाए और कुर्बान कर दे। क्योंकि मोहब्बत बहुत होती है, जानवरों से भी मोहब्बत हो जाती है। पीछे पीछे भाग कर आएगा और सर रगड़ेगा और दौड़ेगा और यूं उछलेगा। अब इतना उछल कूद करने वाला बेटे की तरह पालते हैं लोग, अगर मुबालगा करूं तो। अब इसको राह खुदा में कुर्बान करने का मौका आया। इसका खून बाद में निकलेगा, इसके आंसू पहले निकल आएंगे मोहब्बत में। ये कुर्बानी जो है ना, मिठा मदीना, ये असल कुर्बानी है। हम लोग भी अपनी तरफ से करते हैं कुर्बानियां, ये असल कुर्बानी है कि जो नफ्स पर गिरा गुजरे, बर्डन पड़े, और इसमें अल्लाह का हुक्म है, खलास कुर्बान। ये एक मदनी फूल आप कबूल कर लीजिए, जिनके पास जगह है और जो इसकी खिदमत कर सकते हैं, लोग पालते हैं, तो पहले से नियत कर लेंगे तो ये पहले से कुर्बानी का हो जाएगा। और मदीना ये खिदमत करें और उसके जो भी आदाब हैं उसका भी ख्याल रखें। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मध्य मरकज़ फैज़ान मदीना में जामिअतुल मदीना के तलबा की जो हाज़िरी का एक तफसील है कि आलमी मध्य मरकज़ फैज़ान मदीना के जो मरकज़ी जामिअतुल मदीना है, इनके तलबा के साथ साथ जामिअतुल मदीना गुलिस्तानी जौहर, जामिअतुल मदीना गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A, जामिअतुल मदीना गुलशन इकबाल ब्लॉक 2, जामिअतुल मदीना गुलशन इकबाल लाल फ्लैट, जामिअतुल मदीना हबीबिया मस्जिद दोहराजी कॉलोनी, जामिअतुल मदीना बाबरी चौक, जामिअतुल मदीना नाज़िमाबाद और जामिअतुल मदीना बड़ा बोर्ड के तलबा असातिज़ा मजलिस के इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दीगर कुछ इलाकों के भी आशिकान रसूल हाज़िर हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि मद्दे मुज़ाकरे में कसीर मकामात पर भी तलबा किराम और दीगर इस्लामी भाई बराह रास्त जो है वो मद्दे मुज़ाकरे में हाज़िर हैं। तो अमीर हुसैन साहब है कि जिस तरह आप तरग़ीब दिलाते हैं, तो रोज़े रखने की भी सिलसिला है, खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी है, तो क्या ही अच्छा हो कि कुछ सहरी की नीयतें भी हो जाएं। और ये इस्लामी भाई यहाँ जो आए हैं, क्या प्रोग्राम है? कल है भी छुट्टी तलबा किराम की, तो ये आते हैं ना रात यहाँ, मगर ये फिर पूरी रात देते नहीं है सब। अल्लाह, ये अभी से वो साइड संभाली हुई है, बेचारे आदी होते ना सोने के। तो ये क्या आप सहरी करेंगे इंशाअल्लाह करीब, रोजा रखना है कल। वैसे भी 9 रोजे और फिर इस अशरे का रोजा जो है ज़ुल्हिज्जा का, इसकी तो इतनी फजीलत है, हमारे यहाँ शोहरत नहीं है, फजीलत है इसकी कि इन 10 दिन में अल्लाह पाक की इबादत किया जाना, ये अल्लाह पाक को सारे साल भर के दिनों से मतलब ज्यादा पसंदीदा है, इतनी इसकी फजीलत है। इसलिए वो इसका रोजा भी साल भर के रोजों के बराबर है। 1 साल का रोजा, 1 रोजा, इन 9 दिनों का। 10 दिन तो ईद का तो रोजा है नहीं, और हाजी जो अराफात में होते हैं उनको ये 9 तारीख का भी रोजा नहीं रखना होता। ये हम लोग जो यहाँ पर हैं, जो हज पर महरूम है इस वक्त हज पर जाने से, तो उनके लिए ये 9 तारीख का रोजा अव्वल आखिर के 1 साल पिछला 1 साल आइंदा के गुनाह मिटाता है, छोटे गुनाह, सगीरा गुनाह। यूं मतलब इन दिनों के रोजे जो 9 रोजे रखे, हमारे पैकेज भी है ना, वो मुमताज बेस्ट ने जो 5 रोजे रखे इन 9 दिनों में, तो वो बेटर यानी बेहतर, और 3 रोजे रखे तो वो मुनासिब, गुड, बेस्ट बेटर गुड, यही तरतीब है गालिबन। तो
आप भी रखिए और कारकर्दगी भी दीजिए हमारे नेक अमाल के जिम्मेदार को। तो हमारे यहाँ लिस्ट भी बयान की जाती है कितनी नियतें आई इसकी, ये कि इंशाल्लाह रोज़ ये नियतें भी बयान की जाती रहेंगी आजकल रोज़ाना मदनी मुज़ाकरे में, और साहरी का भी इंतज़ाम होता रहेगा इंशाल्लाह। आशिका नज़ुल साहरी भी करते रहेंगे और रोज़े भी रखते रहेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। रोज़ आते रहिए जिनसे मुमकिन हो, रोज़ साहरी तैयार। मदनी मुज़ाकरे में, खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में ये गिलास भी नहीं होता, लाइव दर लाइव हम एक दूसरे को देख सकते हैं। सवालात भी करने की इजाजत होती है, सवाल भी कर रहे होते हैं साहिब भाई, ये भी दिलचस्प सिलसिला होता है, जरूर करम फरमाइए। फिर इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरों में, खुसूसी मदनी मुज़ाकरों में गरीब ज़ादा भी आपकी मुलाकात से मुशर्रफ होंगे इंशाअल्लाह। और सहरी के लिए इंशाअल्लाह टोकन की तरकीब होगी, और रोज़ा जिसको रखना होगा ना कल, सिर्फ सहरी की इजाज़त उसी को होगी, दूसरा कोई ना खाए वो खाना, ये ख्याल रखिएगा। टोकन ले लीजिएगा, फरागत के बाद टोकन में आपको मिल जाएंगे जब आप लेने जाएंगे। तो सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलबा इकराम को मौका भी मिलेगा ना, खुसूसी मदनी मुज़ाकरा जब होता है बराह रास्त सवाल करने का भी मौका मिल जाता है। जी हम तो इंशाल्लाह नसीब होता है, उनको मिलता है, वो तरकीब कर लेते हैं। जो सारे एक वक्त में बोलेंगे तो नहीं होता जी, माइक पर इनको मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि फजर की अजान तक सिलसिला चलता रहता है, रात वैसे भी छोटी है कि देर हो जाने के बाद सोएंगे तो फजर के लिए आपको टेंशन, अल्लाह करे टेंशन हो हमको यार, नमाज कज़ा होती है टेंशन ही नहीं होता, हालात ऐसे हैं कि नमाजी को भी टेंशन नहीं होता कि मेरी नमाज क्यों चली गई। जो नहीं पढ़ता वो तो बेचारा नहीं पढ़ता, अल्लाह उसको हिदायत दे, तो टेंशन होना चाहिए। ऐसा टेंशन हो के आदमी को थोड़ा वक्त रह गया ना अब नींद ना आए, कहीं मेरी नमाज ना रह जाए, ये टेंशन होना चाहिए। अगर खुद ही तकरीबन 5 बजे तक, 5:15 बजे जमात है, तो 5 बजे या 5 से 2-4 मिनट पहले अजान हो जाती है फजर की, तो फजर की अजान तक हम लगे रहते। मैं तो वो ज़ाहिर है कि वो सहरी तो रोज़ादार लोग करते हैं, मैं अपने इस पर लगा रहता हूँ, सवाल जवाब का जो सिलसिला होता है उसमें। फजर में आँख खुलने के ताल्लुक से जो आपने फरमाया, घरों में नाजरीन हमारे इस्लामी भाई हैं, हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें हैं, इसी तरह और भी कई जगहों पर तलबा कराम भी हैं, आम इस्लामी भाई भी हैं। ये इम्तिहान अगर अपना हम लेने की आदत बना लें कि मैं ख़ुद अपने अलार्म पर फजर में उठूँ, और अब ना उठने की सूरत में फिर क्या एहतिमाम हो वो एक अपनी अलग है, क्योंकि हर जगह हर घड़ी हर वक्त कोई उठाने वाला ही हो ये भी इतना ज़रूरी नहीं होता। और बाज़ों का तो मतलब घंटी नहीं घंटा भी बजे तब भी ना उठने वाले ने तो उठना नहीं है। तो इसकी सूरत जैसे कि है कि क्योंकि उठाना आसान नहीं होता, बाज़ों का जैसे कि ऐसा लगता है कि उठाने वाले को कहा जाए कि भाईजान आप उठ जाइए, मैं इमाम साहब को बोल कर आता हूँ कि ज़रा हज़रत उठ कर आ रहे हैं, आप ज़रा इंतज़ार कीजिएगा। और इतना मतलब कि उठ ही नहीं रहे होते और नमाज जमात कोई मतलब इनको ऐसा टेंशन नहीं होता। आपने अभी बहुत प्यारी बात कही, अल्लाह करे कि टेंशन हो, यही प्रॉब्लम है। और ये नहीं उठते, अलार्म ये मोबाइल भी बच के थक के ख़त्म हो जाता है, इसका क्या करें? बस ये कि बाज़ों का तो वाकई किसी की नींद गहरी होती है, नहीं उठते। अब वो वाकई अगर वो नहीं उठते 1000 कोशिश के बावजूद, फिर तो उसको गुनाह भी नहीं है, उठ ही नहीं पाता। उसको ये मुकल्लफ तो नहीं है इस बात का सारी रात सोए नहीं फजर पढ़ने के लिए। तो ये शरीयत ने इतनी सख्ती तो इन मानों कर तो नहीं रखी, सोएगा तो सही है। अब नहीं उठता, और नहीं उठते इसका तो मुझे ऐसा तजुर्बा है। एक को मैंने दर्जी थे, और बहुत पुरानी बात है, जब दावत इस्लामी नहीं थी, तो उनको मैंने जब ये उधर उस तरफ थे लियारी आगरा ताज कॉलोनी की तरफ, तो मैंने
दाढ़ी भी रखी थी बेचारे ने और माहौल से भी टच में थे ये। फजर के लिए कोई बात मेरी चली कि आप भाई अलार्म रख लिया करो फजर के लिए उठने के लिए। तो कमाल ये हुआ कि वो ये सब मेरा ख्याल है बच्चे ये कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा जो अक्सरियत इसमें जो यहाँ बैठी हुई ना उस वक्त दावत इस्लामी नहीं बनी थी जब ये वाक़या हुआ था गालिबन। तो ये दावत इस्लामी की शुरुआत थी। तो वो आगरा ताज में बम गिरे थे, समझे, बम गिरे थे और पाक को हिंद की जो जंग हुई थी सन 71 में गालिबन, तो दावत इस्लामी नहीं थी उस वक्त। हाँ, तो वो बम गिरे थे, 2 बम गिरे थे। हम लोग पहुंचे थे वहाँ, देख रहे हो बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे और लाशों के ढेर और मतलब अल्लाह करम फरमाए। तो बड़ी यानी कि वो आजमाइश का दौर था और मकानात और सब, न दावत इस्लामी थी हमारी न FGRF थी वरना खिदमत करते। तो उसमें मतलब उसने मुझे कहा कि आप मतलब मुझे अलार्म का मशवरा दे रहे हैं। जब आगरा ताज में बम फटे थे ना, बम कैसा धमाका था, मेरी आंख उसमें भी नहीं खुली थी। हैरत अंगेज बात। तो आपने अभी इरशाद फरमाया कि उसको उठने के एहतमाम, अब जैसे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुछ एहतमाम फरमाए आँख ना खुलने के तरफ से, कैरुल्लाह में सोना और जमात का चला जाना वगैरह, वो जो सारी जो बात मैंने 1000 कोशिश के बावजूद आँख नहीं खुलती, ये अल्फाज मैंने कहे हैं। ये एक 1000 एक मुहावरतन मैंने सारी कोशिशें कर ली, बहुत सारी कोशिशें कर ली, नहीं खुल पा रही। अरे अब फजर की जमात है 5:15 बजे और सोया है रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे, 1000 कोशिश करके सोना कि भाई ये मतलब कि ये घंटी नहीं, मैं इसके 4 घंटी रखूँगा, एक 4:45 बजे बजेगी, एक 5 बजे बजेगी और एक 5:10 पे बजेगी। तो अब ये कि इसका सोना कितना होना चाहिए, ये खतरनाक है जो आप मशवरा दे रहे हैं ना, माफी के असल में यही 4:45 और 5 और 5:15 है ना, 4:45 वाली जगह देगी, 5 वाली जगह देगी और यूं नींद में 5:15 वाली पर हाथ पड़ जाएगा, वो ये इसी तरह खामोशी इख्तियार कर लेगी और ये फिर ये इसी तरह का इत्तेमाम तो होता है। 1 शॉट होना चाहिए, एक बार बजे तो बस खलास अब बैठ जाओ, उधर अब असल में बैठे बैठे नींद गहरी नहीं आएगी। अच्छा, अब ये है कि जैसे मोबाइल फ़ोन में या दीगर घड़ियों में ना तो स्नॉज करके एक वर्ड है वो रखा गया है कि, और इसकी भी बाकायदा टाइमिंग है कि ये रिपीट अलार्म है, 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद बजे। तो ये अब ये भी एक तरीक़ेकार अब आ चुका है, तो इसको भी लिया जाता है। अच्छा, अब जैसे कि तकिया रख कर ना सोना या इस तरह का कोई एहतमाम करना, ये पक्की नींद ना आए, ऐसे कुछ अगर मदनी फूल अगर आपकी तरफ से मिल जाए, किए जा रहे हैं ना, तो वो माशाअल्लाह मदीना मैं रिपीट करूं जरूरी भी नहीं है। 6 से 7 जो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने जो तरीक़ेकार बयान किया है, तो अगर उसी तरह का एहतमाम अगर इस्लाम भाई करें कि अब बिल्कुल ऐसा वो पंखा भी चलाना है, AC भी चलाना है, वो ब्लैंकेट भी ओढ़ के चादर ओढ़ के सोना है, 2 घंटे फजर में उठने को रह गए हैं, मैं पूरा एहतमाम करके सो रहा, घट्टी मैंने रखी हुई है, आँख खुलेगी। अब ये तजर्बा यही है कि इस पर तो कोई शायद धमाका भी होगा तो ना खुलेगी। तो ये पूरा एहतमाम करें और उसके बाद फिर जैसे आपने इरशाद फरमाया कि अब भी नहीं खुलता, वो माजूर है, तो खाना कम खाए, है ना, कि जो मतलब डट के खाए और तहज्जुद में उठना चाहे तो बांझ से बच्चा मांगना, ये आला हज़रत कह जी। तो डट के खाएंगे तो नींद भी डट के ही आएगी। ये मत छेड़ो भाई, पेट करा पेट मेहनत करवाता है, पेट को नहीं छेड़ो, मुंह से निवाला हमारे मत निकालो और बोलो क्या करना है। यानी गोया कि आप सोने पर कुदरत के, मैं जैसे कि नींद जैसे सोने का टाइम है तो मैं सो जाऊं, और उठने पर कुदरत होना कि ये उठने का टाइम है उठ जाए, ये भी गोया कि एक बहुत बड़ी नेमत हुआ। बेशक ये बहुत बड़ी नेमत है कि आदमी उठ जाए। नहीं, असल जज्बा नहीं होता है। अच्छा, सन 80 में मीना शरीफ में माशाअल्लाह में मतलब यानी कि हम तो ऐसे रोडों पे पड़े थे, काफिले से तो बिछड़ गए थे, दावत इस्लामी अभी बनी नहीं थी, तो कुछ मतलब मेरी नूर मस्जिद के मुक्तदी ऐसे जानने वाले मिल गए, ये लोग भी आए होंगे ग्रुप में, तो एक उसको मैं जानता था, उसको
तो उसने अपने आप पनाह दे दी। तो मैं उसके यहाँ, मैं अकेला ही रह गया था। तो मैं मतलब इस वहाँ जो थे उनको कह दिया फजर के लिए मेरे को जगा देना। रात को मैं सोया, लेकिन मेरी आँख तो खुल गई और एक दूसरे को ये जगा रहे थे। मुझे आखिर तक किसी ने जगाया नहीं, मैं जाग रहा था। तो मैंने कहा इनका भरोसा नहीं करना है। दूसरी रात आई मीना शरीफ वाली, तो मैंने बोला मैं नहीं सोऊंगा यार, ये मेरी फजर कोई खतरे में डाल देगा, उठाएगा नहीं। तो मैं एक पिल्लर था, यकीन मानिए उस पिल्लर के पीछे पानी की बोतल, पानी भी नहीं मिलता था। और बड़ी नल पर नल थे, नल के तो ऐसी भीड़ होती थी कि अपने तो रश में घुस के और पानी निकालना जान जोखम और बहुत मुश्किल तरीन मामला था। ना बाल्टियां और पतीले तो थे नहीं मेरे पास। एक तरह हर मसला हुआ। खैर, तो अब ये कि मैंने पानी का बोतल अपना लिया कि सुबह वजू करूंगा फजर में, मैंने पिल्लर के पीछे इसको छुपा के रख दिया अपने हिसाब से, अपने ज़ो में बात दिल में ये छुप गया है। तो मैं अब सुतून के उसमें टेक लगा के बैठी, उन्होंने कहा लेटना नहीं है, इसमें ज़्यादा नींद पक्की आएगी नहीं, खुलती रहेगी आँख। तो मैं बैठा रहा, फिर ये मतलब कुछ रोशनी चहल पहल है कि फजर का टाइम हो गया। अब मैंने यूं हाथ डाला, बिल्कुल इसी तरह मैंने हाथ डाला कि बोतल यूं उठा, मेरे हाथ में कुछ आया नहीं, देखा तो बोतल को लेकर जा चुका था। अब बहरहाल वो मैंने तो पैसे उसे खरीद कर पानी वहाँ वजू किया यार, वो पीने का जो मिनरल वाला पानी नहीं है, तो मतलब फिर खरीदो भाई। तो उस वक्त शायद 1 रियाल का बोतल था और हमारे रुपये बनते थे पाकिस्तान के 2.25 या 2.5 रुपये 1 रियाल बनता था। तो यूं मतलब बोतल पानी, मुझे एक बोतल भी गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। तो खैर, तो यूं अब तो पता नहीं रियाल के रुपये कितने, अब तो बहुत ज्यादा हो गए, 60-70 हो गए होंगे कि नहीं, 80 रुपये तकरीबन 80 रुपया 80 रुपये हो गए। उस वक्त 2.25 से 2.5 रुपये थे वो रियाल। इस तरह मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फजर नमाज के वक्त में अदा की। तो ये टेंशन ने मुझे लेटने नहीं दिया, बिठा के रखा कि यार कोई ऐसा नहीं है जिस पर अब तो तुम भरोसा करो तुमको ये उठा देगा। सबको अपनी अपनी में, बेचारे वो भी सारे मुसाफिर थे, तो किसी को कोई सोच का ही नहीं पड़ता होगा। और ना ये कोई अपना कोई काफिला तो था नहीं, मैं था ही अकेला, ना उस वक्त कोई ऐसी शोहरत थी, ना कोई दावत इस्लामी थी, ना कोई पीरी मुरीदी थी, कुछ भी नहीं था। तो यूं मतलब यानी कि ये तरकीब बनी। तो आप हिम्मत करें, टेंशन से मेरे और भी वाक़यात हैं बात नमाजों के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस तरह के अजीब व गरीब हालात में भी मैंने नमाज नहीं जाने दी अपने हिसाब से। यूं जीते जागते अपने बैठे हुए हैं, कोई उज़्र भी नहीं है और यूं नमाज कज़ा हो जाए ये अपनी डिक्शनरी में नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। नमाज फर्ज है, नमाज के बगैर यार आदमी काम किस काम का। अब लाख खैरात नहीं करो, ये करो वो करो, लेकिन नमाज ही नहीं पढ़ते तो फिर बात कैसे बनेगी। नमाज रोज़े महशर के जहाँ गुदाज बुवद अव्वली पुरसिश नमाज बुवद, महशर का जो जान घुलाने वाला जो दिन है, उस दिन सबसे पहले नमाज पूछी जाएगी, नमाज के बारे में सवाल होगा। हदीस पाक में भी है, तबारनी औसत में और जिया ने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले क़यामत के दिन बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर ये दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी ठीक रहेंगे, और ये बिगड़ी तो सभी बिगड़े। और एक रिवायत में है कि वो खाइब खासिर हुआ, यानी वो नुकसान वालों में हुआ। ये जरूरी है। सब मेरे मदनी बेटे जो हैं नमाज की बिल्कुल यानी कि अपने बिल्कुल वो मोहर लगा दें, नमाज ना पढ़ने वाला जो ज़हन है उस पर कि नमाज पढ़नी है, एनी हाउ पढ़नी है, मरते मरते भी सजदे में सर रख देना है अल्लाह के हुजूर, नमाज नहीं छोड़ना।
इंशाअल्लाहुल करीम। वैसे अमीर सुन्नत वो है ना, सीधी करवट लेटने से भी गफलत की नींद नहीं आती, चटाई पर सोने से गफलत की नींद नहीं आती, चमड़े का तकिया हो और खजूर की छाल उस पर भी गफलत की नींद नहीं आती, बंदा उठ जाएगा फौरी। उल्टी करवट पर ये होता है कि जो दिल है ना ये उल्टी साइड पे टेक लगा लेता है, उल्टी सोएंगे ना तो नींद थोड़ी गहरी आएगी, और सीधे हाथ पर दिल जो है ये मुअल्लक न लटकता रहेगा, तो नींद जो है ये इतनी गहरी नहीं आएगी। सीधी करवट, सुन्नत भी सीधी करवट, और इस तरह हाथ कि थोड़ा ये इस हिस्से पर और थोड़ा ये गाल पर, किबले की तरफ मुंह, अल्लाह नसीब करे। क्या कब्र में भी तो किबले की तरफ मुंह करके सोना है ना, तो अभी से प्रैक्टिस करने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मैं शहबाज अत्तारी बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से अर्ज करता हूँ। प्यारे अमीर सुन्नत, आपकी बारगाह में अर्ज ये है, पूछना है कि मेरा भाई पाकिस्तान से बाहर रहता है, तो उसने मुझे एक मखसूस रकम भेजी है मेरे बैंक अकाउंट में कि ये कुर्बानी के लिए, तो मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए कि मैं उस रकम को किस तरह से कुर्बानी के लिए करूँ, कि मैं उनसे इजाज़त लूँ या वो पैसे अपने लिए मिल करवा लूँ, तो क्या तरीक़ेकार हुआ, क्योंकि उन्होंने तो मुझे रकम भेज दी है कि एक बड़ा जानवर लेके घर में की तरफ से कुर्बानी कर दी जाए, तो उसके लिए मेरे लिए क्या रहनुमाई है, इरशाद फरमा दीजिए। क्लियर ही है ना कि पैसे ही भेज दिए कुर्बानी का, आपको वकील कर दिया इन्होंने कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, ये भी तो कहा है ना। तो अब ये कि आप जानवर उस रकम का जो भी बजट है उसका उसके हिसाब से शराइत के मुताबिक जानवर ले लें, और कुर्बानी करते वक्त ये जहन में रखना है कि जिस मुल्क में वो हैं और आप जहाँ कुर्बानी करेंगे जिस मुल्क में, तो दोनों मुल्कों में कुर्बानी का वक्त हो, उस वक्त कुर्बानी करेंगे तो उनकी तरफ से कुर्बानी हो जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आइए मदनी चैनल के नाजरीन आपको कुछ दिखाते हैं। मारखोर बुनियादी तौर पर जंगली बकरी की एक बड़ी किस्म है जो पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात खुसूसन चित्राल, गिलगित, कोहे सुलेमानी, गजर और हिंजा के इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी सींग 4 फीट तक बड़े होते हैं और बलदार होते हैं। इसकी दुनिया भर में 5 इकसाम हैं, जिनमें से 3 पाकिस्तान में पाई जाती हैं: सुलेमान मारखोर, कश्मीर मारखोर और स्टोर मारखोर। ये जानवर पाकिस्तान का कौमी जानवर के तौर पर भी जाना जाता है। अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि आप इस बारे में रहनुमाई फरमाएं कि मारखोर का गोश्त खाना कैसा है, और क्या अगर कोई इसकी कुर्बानी करे तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? मारखोर चूंकि जंगली जानवर है और जंगली जानवर की कुर्बानी नहीं होती, तो जिसने कुर्बानी की नीयत से उसको ज़बा किया उसकी कुर्बानी नहीं होगी, अलबत्ता गोश्त उसका हलाल है। अलबत्ता ये मसला जो था वो अर्ज किया मैंने कि इस तरह के जानवरों को शिकार करना जो है ना ये कानूनी जुर्म होता है। इसके लाइसेंस वगैरह जो भी है जब तक कार्रवाई पूरी ना करे कोई शिकार ना करे। ये पहाड़ी बकरा कहलाता है मारखोर। मार माने सांप, खोर माने खाने वाला। सांप खाता होगा ना, हमारा कौमी जानवर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की कौमी सब्जी जानते हैं कौन सी है? भिंडी। कौमी परिंदा हमारा जो है वो चक्कोर। ये चक्कोर हलाल परिंदा है। ये पूरा वो फजाओं में नहीं उड़ता, ये मुर्गी की तरह ये थोड़ा थोड़ा उड़ता है, जंप लगाता है। और ये अपने रोडों पे जो सफर करते हैं ना उसमें नजर आता है चक्कोर। छोटा सा परिंदा होता है, कबूतर जितना, इससे भी छोटा होता है। तितर, हाँ तितर इतना होता है। ये भी कौमी परिंदा है। अभी कुर्बानी का जानवर ले लिया और अगर उस जानवर की अभी कुर्बानी नहीं करनी है इस साल, एक साल इसको और मजीद पालना है, उसको हम पालने के लिए रख के और दूसरा जानवर कुर्बानी का ले सकते हैं? अगर शरई फ़कीर नहीं है, ये गनी है, वैसे लिया था उसने, अब दूसरा जानवर, ये जानवर रख के दूसरा कुर्बान कर लेते हैं इससे बेहतर या इसके दर्जे का, और इससे बेहतर कुर्बान कर लेते हैं और उसको अगले साल करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। सुभान अल्लाह। अब
शरई फ़कीर जो होता है ना, जो जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है निसाब के एतबार से, मुसाफिर मालदार जो है उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं होती, लेकिन शरीफ फ़कीर नहीं कहलाता हो। तो ये शरीफ फ़कीर जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है निसाब के हिसाब से, तो उसने अगर कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदा तो उसको तो कुर्बान करना वाजिब है, ये तो इसको रख नहीं सकता दूसरे साल के लिए, रखेगा गुनाहगार होगा। बल्कि ये कि ये कुर्बानी का वक्त निकल गया तो अब इसको जिंदा सदका करना होगा, जिंदा अब ज़बा करके अगर सदका किया तब भी मतलब ये कि जो ज़बा करने की कीमत में कमी आई, कीमत भी साथ मिला के सदका करना होगा। आइंदा साल अगर इसकी कुर्बानी करे तो फिर भी नहीं हो सकती। अच्छा, गनी है तो अगर उसने कुर्बानी के लिए जानवर लिया है और अब वो जानवर चाहता है कि मैं इसको साल भर और तगड़ा हो जाएगा तो पाल लेता हूँ या जो भी वजह हो, तो इससे बेहतर दूसरा खरीद ले और उसकी कुर्बानी कर दे, इसकी भले आइंदा साल कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है, प्यारे अमीर अहले सुन्नत, हम हर साल आपके नाम की कुर्बानी करते हैं, तो आपसे इजाज़त तो लेने का कोई सिलसिला नहीं है, हम आपसे इजाज़त कैसे लें? तो हुजूर आपके नाम की जो कुर्बानी करते हैं वो आपकी तरफ से अदा हो जाती है, और हम हर साल इसी तरह हुजूर गौसे आज़म के नाम की भी कुर्बानी करते हैं, तो क्या हुजूर गौसे आज़म की तरफ से भी हमारी कुर्बानी अदा हो जाया करेगी? हुजूर रहनुमाई फरमा दें। गौस पाक के तरफ से कुर्बानी है तो अंदर छूटेगी इसाल सवाब है। जब जिंदा शख्स की तरफ से कुर्बानी तो वहाँ इजाज़त के मसले हैं। तो मैं अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए वो इजाज़त की सूरत अगर मेरी तरफ से कुर्बानी तो मेरी इजाज़त ज़रूरी। जो आपने किया अगर उसमें नियत इसाले सवाब की थी तो वो इसाले सवाब हो गया, कुर्बानी आप लोगों की तरफ से ही हुई, लेकिन ये कि इसाले सवाब जो है ये मुझे इसका सवाब पहुंचेगा इंशाअल्लाह करीम। तो मुझसे इजाज़त लेने की सूरत वाकई ये भी मुश्किल है, तो आपका तो खुशनसीब है कि आपकी कॉल चल गई है। इतनी कॉल आती होंगी किस किस की चलाए बेचारे, फिर बाद होंगे रिकॉर्डिंग सही नहीं होती है, बाद होगा कुछ तो कोई ना कोई बात होगा तो खराबियाँ होती है कॉल में, वो चला ही नहीं जा सकती। चलेगी तो किसी को समझ में नहीं आएगी, तो गड़गड़ गुड़ 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 लोगों को रिकॉर्ड करना नहीं आता। अब आजकल गर्मी है ना तो खड़ 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 पंखा चल रहा होता है, इसमें ये बोल रहे होते हैं। अच्छा, फिर बोलने में क्या बात आती है, यूं बोलते हैं। अब यूं गोले बहुत करीब करेंगे तो क्वालिटी खराब हो जाएगी, पंखा चल रहा है क्वालिटी खराब हो जाएगी आवाज़ की, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर भी सही नहीं करेगी। बिल्कुल यानी कि वो 120 की स्पीड में भागते हुए 150 की स्पीड में आप बोलते रहेंगे तब भी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इसलिए मतलब बेहतर क्वालिटी सूरत में होगी पंखा बंद, आवाज़ नहीं। मेरे को इतनी बात कॉल बार बार सुननी पड़ती है, ये तकलीफ दे होती है, सोचका ही नहीं पड़ता। स्कूटर पर जा रहे होते होंगे ये बोल रहे होते हैं, या होते कार में जा रहे होते हैं बोलते हैं तो एकदम पीप फिर घर घर, तो वो समझ नहीं आती कहना क्या चाहता है बात होगा। तो एक से ज़्यादा बार भी सुनना पड़ता है ज़रूरतन। तो इस तरह के ये कहाँ चलाएंगे यार, और क्यों चलाएंगे इस तरह? तो हमारे मतलब नाजरीन जो ना आगे पीछे हो जाएंगे, नुकसान होगा। तो इसलिए जिसकी सही होती है, क्वालिटी सही और अल्फाज भी वाजबी समझ में आने वाले, तो ये कॉल्स चलती हैं। तो जिनकी नहीं चलती ना तो वो दिल बड़ा रखे के और अपनी खामी दुरुस्त करें। मदनी चैनल वालों को बुरा भला ना कहे कि हमारी कॉल नहीं चलाते, भाई तुम्हारी टांगे नहीं तो कैसे चलाएं? इतने बाकरामत नहीं है ना ये बगैर टांगों के भी चलाना शुरू कर दे। जिसकी कॉल दुरुस्त नहीं हो बगैर टांगों की है। दोबारा लेके इजाजत की तो सूरत वाकई मुश्किल है। तो मेरे ईसाले सवाब की नीयत से कर लिया करें। ईसाले सवाब तो सबको कर सकते, मेरे पूरे खानदान को कर दें, सारे अत्तारियों को कर दें, सारे दावत इस्लामी वालों को कर दें, सारी उम्मत के लिए ईसाले सवाब कर दें, ये भी हो सकता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी प्यारी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करते थे, और इसका गोश्त सब सैयदों को तकसीम फरमाते थे।
आका के बेटों को, औलाद को। खुद फरमाते ना, तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और मजीद फरमाते आला हज़रत, और अब सुन्नत करीमा के इत्तिबा से ये नियत कर लिए कि इंशाअल्लाह ता बकाए जिंदगी अपने उन अहले सुन्नत भाइयों की तरफ से कुर्बानी क्या करूंगा। आला हज़रत फरमा रहे, कुर्बानी क्या करूंगा जिन्होंने कुर्बानी न की, खा गुजर गए हों या आइंदा आए। सब सुन्नियों की तरफ से आला हज़रत ने नियत की कि मैं भी ये सुन्नत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सारी उम्मत से की, तरफ से की, तो मैं भी अब सुन्नियों की तरफ से करता रहूंगा। तो आला हज़रत ने जो नीयत अता फरमाई है कि मैं ऐसा करता रहूँगा, जैसे एक बड़ा जानवर कोई किसी के यहाँ है और उसमें से वो एक हिस्सा इस नीयत के मुतालिक कर दे कि ये जो एक हिस्सा है इसमें मेरी ये नीयत है, तो क्या इस नीयत पे ये जितनी ये इसने नीयत की है और जो आला हज़रत अलैहि रहमान ने जो तरबियत फरमाई उसके मुताबिक उसको सवाब मिलेगा। तक़र्रुब इल्लल्लाह की नीयत हो ना, इस नीयत से जो भी कुर्बानी में हिस्सा होगा वो दुरुस्त होगा। अकीका है जैसे, कुर्बानी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये अल्लाह को तक़र्रुब इल्लल्लाह का काम कहलाता है कि अल्लाह के करीब करने वाला, तो ये अकीका इसमें हो जाएगा। किसी होटल वाले ने कहा कि मेरा हिस्सा रख दो, 7वां हिस्सा गोश्त चाहिए, तो अब किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। तो ये जो उम्मत के इसाले सवाब के लिए हिस्सा रखा गया है ना, तक़र्रुब इल्लल्लाह का, ये भी तो यूं कुर्बानी का हिस्सा भी पॉसिबल तो है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़कीर का मामूल है कि कुर्बानी हर साल अपने हज़रत वालिद माजिद ख़ातमुल मुहक्किकीन क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की तरफ से करता है, और इसका गोश्त पोस्ट माने खाल, स्किन, तो इसका गोश्त पोस्ट सब तसद्दुक़ कर देता है, गरीबों को सदका करते हैं। और एक कुर्बानी हुज़ूर अक़दस सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से करता है, और उसका गोश्त पोस्ट सब नजरे हज़रात सादात किराम करता है। खाल भी सैयदों को और गोश्त भी सैयदों को। फिर एक और मकाम पर फरमाते हैं कि माँ बाप की तरफ से बाद मौत कुर्बानी करना अजर अजीम है, इसके लिए भी और इसके वालिदैन के लिए भी। तो माँ बाप की तरफ से तो कुर्बानी करनी चाहिए, जो वफात याफ्ता हैं खासकर, तो ये बड़े सवाब का काम है। अच्छा, हालात जो ये गरीबों को बांट देते थे, सदका कर देते थे अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए, तो ये आलाज़त का एक अपना फेल है, वाजिब नहीं है। अगर किसी मालदार को भी गोश्त दिया तो है जायज़, खुद भी इसको खाया तो है जायज़, ये ज़हन में रखिएगा। आपने अभी रिकॉर्डिंग के ताल्लुक से माशाल्लाह मदनी पुल अता फरमाया, जो इस्लाम में रिकॉर्डिंग करते हैं और बाद औक़ात बड़ी आवाज़ होती, गरगराटी होती है, शोर होता है, हारन बजरे होते हैं, या आवाज़ साफ, ये बहुत ऐसी आवाज़ होती है कि उसको 4-4 3-3 दफ़ा सुनने के बाद समझ आती है। बात तो इतने तेज़ बोलते हैं कि उसको 1.5 और 2 पर ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो 1 पर ही 2 पर जा रहे होते हैं। तो ये भी बाद औक़ात इनका होता है कि वो इनकी स्पीड होती है, यानी बाद औक़ात वॉइस जो समझ में नहीं आ रही होती और शोर बहुत होता है। तो हुज़ूर क्या हम उन्हें इनकी ही वॉइस दोबारा भेज सकते हैं कि बराए करम ये आप खुद सुन लें और मुझे वाज़े तो साफ़ वॉइस भेजें, क्योंकि मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि अगर उसको शायद 2-3 दफ़ा इनकी वॉइस इस तरह हम रिपीट भेजेंगे कि यार करम कीजिए, तो हो सकता है कि आइंदा के लिए वो हमें भी और किसी और को भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड कराते हुए सोचे कि यार मैं 1 मिनट की तकलीफ़ उठा लूँ, अगले को 5 मिनट की तकलीफ़ में डालने से बेहतर है। क्या फरमाते हैं? ये बस वो जज्बे की बात है। मैंने कभी कभी ज़रूरी होती है ना तो बोलता हूँ कि यार समझ में नहीं आ रही, बाकी सबको बोलने जाएंगे तो अपने बच्चे छाई बेली कब होंगे यार। ये मदनी चैनल के लिए फिर स्टाफ रखना पड़ेगा इसका, तो वो सबको बोलते रहे कि भाई भेजो, फिर बोले कि भेजो, ये तो मुश्किल हो जाएगा। मैं तो प्राइवेटली बात कर रहा हूँ, जैसे हमें जो आते हैं मैसेजेस बात होगा उसका, तो कभी कभी ऐसा वो हर बार नहीं कर सकते। अरे एक तो सुनना प्रॉब्लम होता है, बाज़ औक़ात
टाइम के मसाइल होते हैं, कुछ ना कुछ मसरूफियात ज़ाहिर होती है, खाली ये लेके थोड़ी बैठे होते हैं, तो आगे पीछे हो जाते हैं पैगामात, बहुत सारे पैगामात बाज़-ओ-बाज़ होते हैं। तो मैंने तो अपनी जहाँ नमाज पढ़ता हूँ ना, कुर्सी जा रखी है तो इसके साथ ही स्विच लगा लिया है, 2 वे रखा है, पंखा चल रहा होता है तो वो बस वो रिकॉर्डिंग के टाइम पर आमतौर पर मैं पंखा बंद कर देता हूँ और बगैर पंखे के मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि जिसको भेज रहा हूँ उसको बेचारे को समझ पड़े और अच्छी लगे आवाज़, मज़ा आए, उसको तकलीफ ना हो, ये कोशिश मैं करता हूँ। मैंने पूरे जो पैगामात रिकॉर्ड करता हूँ ना, कई मतलब मिनटों के, आधे घंटे के, पौन घंटे के, ऐसा कई बार मौका हुआ है कि बगैर पंखे के कमरा बंद करके गर्मी हो रही है और मैंने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इससे क्वालिटी बनती है। अब ये कि मैं बनाऊंगा और बेचारा उसको समझ नहीं पड़ेगी और मतलब परेशानी है ना, ये कोशिश करनी चाहिए हमें खैर ख्वाही की नीयत से कि उसकी दिल जोई होगी, उसको सहूलत होगी, ये करना चाहिए। गाड़ी भगा रहे हैं कड़ 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 पीप, अब इसमें आप बोल रहे हैं तो आधी बात समझ में आएगी, आधी बात समझ आएगी नहीं, तो ये एहतियातें करनी चाहिए। हाँ, परिंदों की आवाजें भी बात होते हैं ना, तो ये भली मालूम होती है परिंदों की, ये भोंपों की आवाज में मजा नहीं आता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फेसबुक के ज़रिए एक सवाल आया है, वो सवाल ये है कि किसी ने पूछा है कि मेरी वालिदा इद्दत में हैं और उनकी इद्दत ख़त्म होने वाली है। अब सवाल ये है, वो कहते हैं कि इद्दत से उठने के बाद सुना है कि कहा जाता है कि मस्जिद में जाएं जब जाके इद्दत ख़त्म होगी, तो इस बारे में रहनुमाई फरमाएं कि इद्दत से उठने का क्या तरीक़ा है। इद्दत की मुद्दत पूरी हो गई तो अब उठे या ना उठे, इद्दत खत्म हो गई, कोई जरूरी नहीं है कि अभी इसको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर में रहते हुए उसका टाइम पूरा हो गया इद्दत का। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फरमाने आखिरी नबी, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। इसने 3 मरतबा ये पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये सैयद यूसुफ शाह साहब पोजीशन देकर बैठ गए हैं साहिल को लेकर, तो अल्लाह के नेक बंदो, चल मुझे भी जाके रिकॉर्डिंग करनी होती है। कल भी डबल 12 पेज थे मेरे, 3 किस्तों में मैंने किए। मैं जाकर सोता तो नहीं हूँ घर जाकर, चाय तैयार हो रही, जाते ही चाय तैयार हो रही थी, 1 किस्त उसमें लगाई मैंने, फिर चाय पानी किया, गया, फिर आकर 1 किस्त और लगाई, घड़ी भी अपना काम दिखा रही थी, इसने कहा यार खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में जाना, तो फिर तैयारी की, और फिर वो फजर के बाद 1 किस्त, 3 किस्तों में कल मैंने अपने पैगामात पूरे किए। वो इनका भी टाइम सेट कर लेते हैं, ये मतलब ऐसा हो कि 12 बजे मेरा ख्याल है कि हम, अब ये भी इनको भी सुबह ड्यूटी होती है, वो फिर तो उठ ही गए थे ना, इधर बैठ गए, इनकी शफकत है, तो ज़ाहिर है कि मसरूफियात होती हैं, तो खैर अब ये पोजीशन दे जब है सैयद साहब ना, नहीं इनका मान रख लेते हैं सरकार, नहीं जो आपका मैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل سے ہم جو اپنا ٹائم فکس کر لیں گے انشاءاللہ الکریم، اور کل آپ سے سوالات بھی کریں گے اور بہت سارے جوابات بھی انشاءاللہ لیں گے. انشاءاللہ. سرکار آج والے جو ہے نا وہ کل نہیں ہوں گے، تو ان بیچاروں کا بھی دل رہ جائے گا. نہیں، انہوں نے مطلب کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ ہم کل حاضر ہوں گے، مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کریں گے، اور اگر موقع ملا تو سوال بھی کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، آپ آمین کی شفقت ہے. مرحبا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہ وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ذوالحجۃ الحرام 1444 ہجری کے اندر جنہوں نے نفل روزوں کی نیتیں کی ہیں، آئیے اس کے حوالے سے کارکردگی دیکھتے ہیں. ماہ ذوالحجۃ الحرام 1444 ہجری میں نفل روزوں کی نیتیں، 9 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 20,653 20,653. اسلامی بہنوں کی تعداد 8,257 8,257. 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 27,041 27,041. اسلامی بہنوں کی تعداد 9,082 9,082. 3 روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 48,466 48,466. اسلامی بہنوں کی تعداد 19,724 19,724. کل روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 96,160 96,160. اسلامی بہنوں کی تعداد 37,063 37,063. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں 1,33,223 1,33,223. 19 جون 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کون سا نعرہ لگایا؟ جواب، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا. سوال نمبر 2، اللہ پاک نے اپنی 100 رحمتوں میں سے کتنی رحمتیں دنیا میں مخلوق کے درمیان اتاری؟ جواب، 1 رحمت. سوال نمبر 3، عرفہ یعنی 9 ذوالحج کا روزہ کتنے سال پہلے کے اور کتنے سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے؟ جواب، 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد اسلم منڈی بہاؤالدین، محمد خزیمہ علی بن محمد جمشید ملتان، عبد الرشید اتاری کراچی، محمد عزیر اتاری بن شبیر احمد رحیم یار خان، بنت ساجد اتاریہ علی پور چٹھا، بنت عبد الکریم سیالکوٹ، بنت اظہر اتاریہ بھلوال. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام عبد الرشید اتاری کراچی. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ناظرین، آج کے سوالات بھی نوٹ فرما لیں. ایس ایم ایس کے ذریعے اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، تو اس ایس ایم ایس کے جو نمبر ہیں تو ان کے ذریعے آپ ایس ایم ایس کے ذریعے یہ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے آپ ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، وہ کون سا پانی ہے جسے سر پر ڈالنے اور چہرے پر ملنے سے ذلت و رسوائی دور ہوتی ہے؟ سوال نمبر 2، کیا پچھلی امتوں میں بھی قربانی ہوتی تھی؟ سوال نمبر 3، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں کتنے سال تک قربانی کی؟ تو ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے جو اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے نام اور نمبر کی جگہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں، یا اپنی کنیت ام فلاں یا بنت فلاں کر کے کل مدنی مذاکرے سے پہلے ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین
जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। या रब्बल मुस्तफ़ा, आज के इस मदनी मुज़ाकरे में शिरकत और अब तक जो नामा अमल में नेकियां हैं और जो इस्लाम भाई और मदनी चल के नाजरीन मुझे अपनी नेकियां इसाल करें, इन सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और अपने करम की शायान शान हमें इसका अजर अता फरमा। ए अल्लाह पाक, ये तमाम सवाब हमारी जानिब से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको भी पहुँचा। जुमला अंबिया किराम, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबिईन, तबे ताबिईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन, मशाइख़ आमिलीन, तमाम बुज़ुर्गान दीन, वालिदैन मुस्तफ़ा, जमी अहले बैत अतहार, तमाम शहीदान व असीरान करबला, हसनैन करीमैन, कुल मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, बिलखुसूस सैयदी मुर्शिदी गौस आज़म, इमाम आज़म, गरीब नवाज़, इमाम गज़ाली, इमाम अहले सुन्नत, सदरुल शरिया, कुतुब मदीना, मुफ्ती अहमद यार ख़ान, सदरुल अफ़ाज़िल, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक, हाजी ज़मज़म, दावत इस्लामी के तमाम मरहूम मुबल्लिगीन व मुबल्लिगात और बिलखुसूस अशरे ज़िलहज शरीफ के इन दिनों में जो रोज़े रखे जा रहे हैं और वो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जो अपनी नीयतें मजलिस को जमा करा रहे हैं, ए अल्लाह उनको भी इसका सवाब पहुँचा। या अल्लाह पाक, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। तो बख्श बेहिसाब के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वास्ता तुझे शाहे हिजाज का। या अल्लाह पाक, हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे भाई बहनों को, हमारी औलाद को, हमारे रिश्तेदारों को जो हमसे मोहब्बत करते हैं, उन आशिकान रसूल को, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। या अल्लाह पाक, उम्मत पर नाजिल होने वाली बलाओं को दूर फरमा। या अल्लाह, उम्मत पर गैब से रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह, रहमत की नज़र फरमा, आफ़ियत हम सब का मुक़द्दर बना, नेकियों से मोहब्बत अता हो, गुनाहों से नफ़रत अता हो, अपनी ज़िंदगी शरीयत व सुन्नत के मुताबिक गुजारने की सादत नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक, हमारी बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर फरमा दे और अल्लाह जो हमारे बीमार घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, उन पर भी रहमत की नज़र फरमा। हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे कर्ज़दारों के कर्ज़े दूर हो जाएं, हमारे बेरोज़गार हलाल रोज़ी पाएँ, कारोबारी मुश्किलात का जो शिकार हैं उन पर भी रहमत की नज़र हो, आफ़ियत सब का मुक़द्दर बना दे। हमारे जो तलबाए किराम इस वक्त मदनी मुज़ाकरों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में हाज़िर हैं, ए अल्लाह उन पर भी रहमत की नज़र हो, हाफिज़ा मज़बूत हो, आलिम बाअमल बना, दावत इस्लामी का सबको मुबल्लिग बना, खूब तेरे दीन की खिदमत हो। ए अल्लाह, दुनिया भर में जहाँ जहाँ आशिकान रसूल इस वक्त मदनी मुज़ाकरे में शामिल हैं, सब पर रहमत फरमा, सब पर रहमत फरमा, सबके घरों पर रहमत फरमा, सबकी मुश्किलात आसान फरमा। ए अल्लाह पाक, आलम इस्लाम की खैर फरमा, वतन अज़ीज़ को सलामती दे, हमारे शहर को सलामती दे, हमारे प्यारे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत को दराज उम्र बिल खैर अता फरमा, इनको सेहत व आफ़ियत व दीनी खिदमतों भरी तवील ज़िंदगी नसीब फरमा और जिस तरह ये चाहते हैं हमें दावत इस्लामी का दीनी काम करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह पाक, दुनिया भर में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन मुबल्लिगात जहाँ जहाँ भी तेरे दीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं, ए अल्लाह उन सब की मदद फरमा, मददगार पैदा फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या बना देने कर बना ले
ضائع کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بخت کا چمکے سے سارا حاضری کا گو اشارہ دیکھ کر روزہ پیارا پھر پڑے خادم تمہارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہم وہی بے شرم و بد گئے تم وہی کانے گیا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کوشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں اس
سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں، اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں. یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں، یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے